Good morning, everyone. On behalf of Western India Regional Council, myself, Shweta Jain, Secretary, welcome you all. It's really a pleasure to be with you all in this morning. And today we have with us a very young and dynamic speaker of today's session, Pranay Bafna, Rahul Jain, Coordinator, and Punit Bhandari, Coordinator. So welcome, Pranay, on the platform of WIRC. Thank you, ma'am. Before moving further, I request everyone to please put your hand on your heart for the ICM motto. Yaesha Supteshu Jagrati. I think there is an audio problem. He's fixing, I think there is some technical problem. Yaesha Supteshu Jagrati. Yaesha Supteshu Jagrati. Kamam 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 Pursho Nirvimana Tadeva Shukram Tadeva Some technical problem is there. Tadeva Mritamucchate Tasmin Lokaha Shataha. Okay, so let's start. Mean the time if this error goes off. So, in absentia of our chairman, WIRC, Murtaza Kachwala sir, let me take this privilege to take you through some highlights of this WIRC programs this year. So when we took charge in the month of February 2022, so we have set some goals for ourselves and we are trying continuously to provide our services in best manner for the members and students. We all 21 council members, including our chairman, are trying our efforts in these directions. So keeping members' interest in this mind, this year our focus was majorly on the technology and ethics part. Technology that because we all know how technology is playing an important role in our day-to-day life, and our profession is also no exception to it. So sooner or later, definitely we also have to adopt the technology in our work also. But most of the chartered accountants are facing problems while using the data analytics techniques in the audit, or so many other options or tools are also available, which is most of the chartered accountants are unaware about it. So this year we have started and conducted a lot of technology related program. So one drive, technology drive, we called this series we have started 5 days in a month, specifically dedicated to the technology only. So in which we have completed artificial intelligence, blockchain technology, Python, Tableau, excellent Tableau Fusion, and how best we can use this technology in our work.
even in audit sampling, audit analytics. So something kind of, so this kind of courses we have completed. And we got a really, really great response, especially from even from members in industry chartered accountant also. Then this 2 courses, data analytics courses specifically designed for the members and as well students also. In this course, this is there is some 60 days and 90 days program, virtual program in which Python coding, Power BI. So these techniques we are teaching, workshop it is there, it is hands-on training. So you all can take the benefit even from your sitting from your home also. So this was on a technology part. Other than technology, if everyone knows that chartered accountant need to be updated on a daily basis, what are the changes are going on in our professions, we should be updated on it. So a lot of refresher courses has been designed this year so that in-depth knowledge can be gained by the members. So we conducted an internal audit refresher course, cooperative societies, even for auditing standards refresher course, accounting standards, because these are the things somehow we left behind when we teaching regularly on tax audit, but other than tax and audit, these are also equally important in our profession. Other than this, being a woman myself, of course, some initiatives related to women chartered accountant also has been taken in this year. For second inning chartered accountant series we have started. In this series, the idea behind of this series is those women chartered accountant who has taken a break from the career, and if they want to come back again into the mainstream, of course, a lot of difficulties she may face. Confidence lose हो जाता है, हम knowledge से बहुत ज़्यादा updated नहीं है, since 5 years, 6 years completely out of the professional world, and all of a sudden if we are entering into it, so a lot of things are required. So keeping this in mind, we have designed this course, again 5 days dedicatedly in the month for this series. In this, we have completed we have taught basic Excel to advanced Excel, even Tally, PPT presentation, Excel, complete MS Office, and then how to boost your confidence, personality development, communication skill, everything we have covered in this series. Also, to promote women chartered accountant as a faculty, we have started a series of WOW we call Women on Wednesday. So every Wednesday, we conduct one virtual program where faculty and coordinators are the women chartered accountant. And participants can be anyone, but the speaker just to promote women chartered accountant as a faculty member. So these was the initiative of the WIRC. So let me thank you first to all the members of our region to support us in our activities and supporting us in achieving our goals. So at the same time, we are also trying to available for the members by 24/7. So if anything comes up, anything is there, so please reach out to us, call us. We all are there by 24/7. Sabke numbers bhi websites pe hai. So with this, I will conclude my talk here and will move forward for our today's sessions program on labor law. So before handing over charge to our speakers today, Pranay, I request to Rahul Jain to please introduce him. Yes, thank you very much, Shweta ma'am. Good morning, ladies and gentlemen. It's a great pleasure for me to introduce our speaker today, who is going to talk to us about the labor laws. This is a very this subject is very important for us because it's very important for us to ensure the proper labor laws are followed by all clients. Our speaker, Mr. Pranay Dilip Bafna, is a young chartered accountant practicing from Akola, Maharashtra. He is also a certified concurrent bank auditor and has qualified CFA level 1 and currently is pursuing law. His major work domains are labor laws, GST, and income tax. Mr. Pranay is a specialist in handling labor laws compliances, in which he is assisting many companies about the same. He majorly check the compliances and advisory services in regards to labor laws, restructuring of salary structure,
to optimize the liability of the statutory payments, handling the assessment of the acts, expertise in managing monthly compliances, accurate checklist-based compliance for new labor codes, guide in framing HR policies in accordance with the labor codes. Currently, he is also providing academic guidance to the GST students for the intermediate and final level in regards to GST. So by this, ladies and gentlemen, please join me by welcoming today's seminar, Mr. CA Pranay Dilip Bafna. Thank you. Pranay sir, please, it's all Over yours. to you. And once again, thank you so much for accepting the invitations. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. It's been really honor for me to join hands with you and have a great seminar today. Okay. So let's move on towards today's seminar. Okay, I will be sharing the screen. Wait a minute. Is the screen visible? Yes. Good morning to all. Okay, so today's topic is labor law, PF and ESIC compliances and applicability. Basically, what is labor law? Labor law actually comprises of 40 acts. How many acts? 40 acts. Labor law is so big, it comprises of 40 acts, around 40 acts, of which we are going to see only 2, that is PF and ESIC. And also in that, we are going to see only compliance and applicability, because the litigation process is very vast. Litigations process, compliances are easy, but litigations process are very vast. Okay. So moving on, I also need to inform you that this PF and ESIC code are soon to be getting merged into new labor code, that is Social Security Code. Okay, what's the Social Security Code? They are going to merge these 40 acts into 4 acts. Okay, this is just brief what is going to come. Okay, so जो लेबर लॉ के 40 एक्ट है, वो 40 एक्ट को उन्होंने नहीं है क्या अभी 4 एक्ट में बांटने की कोशिश की है लेबर लॉ ने, और उसको बोला है सोशल सिक्योरिटी कोड. Okay, so basically it's going to come very soon. The bill has been passed in I think March 2020 the bill has been passed, and it is going to be applicable very soon. Okay. What's the difference? There is no major difference in the act, but only the act name has been changed and more clarity towards the concept have been brought in labor law. Okay, in the new Social Security Code, more clarity regarding to the provisions, more clarity regarding to the compliances, more clarity regarding to the definitions. Previously definitions include only dearness. For example, previously definitions of PF would include that PF is applicable on your basic salary plus dearness allowance. This was the only statement they have put in the labor law. But the Social Security Code has brought more clarity in this aspects. Okay, so basically we will divide our sessions. First, we will see the Employee Provident Fund Act. Okay, so Employee Provident Fund Act. This act was brought in year 1952. What is Provident Fund Act? Provident Fund basically is a social legislation. What you mean by social legislation? It is a law. It is a law designed for a particular class of persons to improve their financial health. Okay, what is social legislation? It is an act which is brought for the purpose of improving the special category of persons. Okay, a special category of persons means what? We are going to see very soon. Okay, it's a self-finance security scheme. Self-finance security scheme, employer and employee both contribute in the fund. Okay, so this is self-finance security scheme. There is a certain percentage of contribution of your salary which you need to contribute. Okay, so this is a self-finance security scheme. Here, employer and employee contribute to the fund. It's not a welfare fund. What is welfare fund? Welfare fund is like a subsidy is given to the employee.
This is welfare fund like Pradhan Mantri Krishi Yojana, in which they give 2,000 rupees to the farmers. It's not like that. Here it's a self-finance security scheme. Okay, what is the purpose of social security here? Basically, purpose here means they are going to provide you health care. Purpose of social security here means they are going to provide you health care. They are going to provide you saving habits. They are going to provide you retirement planning. They are going to help the particular class of persons to inculcate the habit of savings. Okay, so this is the purpose of social security. And what is statutory act? This is a statutory act, means if the conditions of applicability are fulfilled, then this act become your statutory act. This act becomes your statutory act. Meaning statutory act means you have to follow it. Like statutory means what? If you are earning the income of 10 lakhs, okay, so you need to pay taxes. This is told in the statute. As per income tax, you have to pay the tax. Okay. Similarly, here they are telling it's a statutory act. If your organizations, you will see it in the letter in the applicability part. If in your organization, if you cross the certain number of employees, organization can be your establishment, organization can be your factory, organization can be anything from which the business is run. Okay, it can be anything. It can be chartered accounting firm. Okay, it can be your hospitals. It can be your banks. It can be your cooperative banks. Anything. So this is a statutory act. Statutory act means if these persons have complied the provisions of what the number of employees has been crossed, so the provisions of this act gets applicable. Okay, we'll see the applicability in brief in the next slide. Is the screen visible? It's applicability. To whom PF is applicable? Every establishment. See, read the words. Every establishment, which is a factory, engaged in an industry specified in Schedule 1. Okay, what is Schedule 1? Schedule 1 contains max numbers of industries. All types of industries and factories are covered in Schedule 1. We will go to the Schedule 1 first. This is Schedule 1. Schedule 1 contains all type of industries. Okay, so what is Schedule 1? It contains all type of industries. These industries, if they cross their limits of employment, means the limit is, I will inform you, the limit is 20. If the number of employees in the organization is 20 or more, so they have to comply for this act. Okay, they have to comply for this act. And if later the employment get reduced, क्या हो जाता है? पहले आपके फर्म में 21 employees थे. Okay, तो act applicable हो गया. Then the capacity shifted to 18 employees. Is the act still applicable? Yes, we will see it. Is it applicable or not? First, we will go to Schedule 1. What is Schedule 1? Schedule 1 includes any industry engaged in the manufacture of any of the following, namely all types of industries are given. Basically, cement factories, cigarette factories, electrical, mechanical, or general engineering products. Okay, these are engineering firms. All types of factories which you can imagine are there in the list. Okay, we will just have a quick go through over it. Okay, paper industries are there. Okay, so basically all the paper industries have to comply for this if the employees in the organization exceeds 20. Okay, I request all to basically this act is the niche area for the CAs in practice. Okay, I will just share one experience. I started my practice 2 years back. Okay, I was about to do all the things like I was doing audit, I was doing GST, I was doing TDS, I was doing income tax, I was doing ROC work. Then I was also doing labor law. Okay, so I just shifted my focus to labor law. Okay, so labor law is such a wide area and the charters are really not taking it seriously. Okay, so what's the issue?
If we charters comply this act now, we can get huge number of clients. It's the other perspective of our session. I'm not going deep in that, but I want to inform you that it's the completely new area of the practice. Okay, if you want to pursue it as a full time, you can surely pursue it, and I bet within a year you won't be any empty-handed of the work. Okay, so let's discuss it again. Textiles, matches, the matchsticks box, which are which factories like matchboxes they are producing, to them is also applicable. Edible oils and fats factories, sugar factories, rubber and rubber products factories, electricity, including the generation, transmission, and distribution thereof. But obvious, the Adani Powers, MSEB, okay, Reliance Energies, to all them the act is applicable. Tea industries, okay, glass, stoneware pipes, sanitary wares, electrical porcelain insulators, it's all the engineering terms, okay, refractories, tiles, heavy and fine chemicals including fertilizer, turpentine, resin, medical and pharmaceutical preparations, okay, toilet preparations, soaps, ink, intermediate dyes, color, laces, toners, fatty acids, and oxygen, acetylene, carbon dioxide, okay. So basically all types of industries are covered here. I'm just having a quick reading of this so that we just get aware which industries are there, okay. So indigo industry is there, lac including shellac, okay, non-edible vegetable and animal oils, industry, power, escotes, biscuits making industries, mica, plywood, rice flooring, rice milling, everything is covered here. Next slide. Fruit and vegetable preservation industries, they provide caged packing, canned packing they are providing, so they are also covered here. Canned and bottled fruit juices and pulps like Realme is one of the biggest player. Jain Irrigation is also one of the biggest player in providing canned and bottled packed vegetables and fruits, okay. Jam, jellies and marmalades, tomato products, squashes, preserved candies, chutneys, and all things are included here, okay. Buttons, brushes, plastic, these are all manufacturing industries. Mark these words, these are all manufacturing industries. If they are manufacturing these things, they are liable to get registered if the employment number in the organization is 20 or exceeds 20, okay. Buttons, brushes, plastic and plastic products, stationery products, and all. Distilling and extracting spirits, paint, varnish industries, okay. Slides are not changing or what? Yes, slides are not changing. It's not changed? Now it is changed. Okay, fine. Non-ferrous metals, bread industry, steaming, and what all things are here, okay. So basically all the industries which you can imagine are listed in Schedule 1 of the PF Act. Just we will have a quick go through. Ice cream industries, winding of thread, cotton, cotton mills are also included. Katha making industries, beer beverage also included. Bead industries are also included. Ferrochrome industries, diamond industries, industries engaged in manufacturing of maroon extract, etc. Bricks industry. Then all such industries of this are manufacturing of buildings industries, okay. Then automobiles and electric industries are included here. Sewing and knitting machines, just we will have a quick go through. Electrical and mechanical or general engineering products, okay. So wires, ships, automobiles, just we will have a quick go through, and these are all included in Schedule 1. Almost each and every industry is covered here, okay. So what's the act says? Every establishment which is a factory engaging any industry specified in Schedule 1, okay. Every establishment which is a factory, we have seen in Schedule 1, they are all manufacturing industries, okay. They are in Schedule 1 in which 20 or more persons are employed. It means that अगर 20 employees भी होते हैं तो आपको ये act applicable हो जाता है. क्या 20 एम्प्लॉइज भी होते हैं तो भी आपको ये एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है, ठीक है. तो एवरी एस्टैब्लिशमेंट व्हिच इज अ फैक्ट्री
engage in any industry specified in Schedule 1 and which 20 or more persons are employed, the PF Act is applicable. Okay. Now, any other establishment employing 20 or more persons which central government may by notification specify on this behalf. For example, if any establishment which is not included, voice is not clear or what? It is clear. You can. In chats, they are telling that the voice is not clear. Okay. No, it is clear. From our side, it is clear. Okay. Any other establishment which is employing 20 or more persons, which central government may notify, may by notification specify on this behalf. Means what? If any organization in which there are 20 or more persons, but which are not covered in Schedule 1, government may by notification make them liable to get registered in PF Act and make the PF Act applicable. Okay. And also there is a voluntary provision. What is that voluntary provision? Any establishment employing even less than 20 persons can be covered voluntarily. They can also apply voluntarily for PF. Is it clear? Okay. Again, there are some things for cooperative societies and state cooperative societies employing 50 or more employees. For general industries, for other establishments and factories, the limit is of 20. But for any establishment registered under Cooperative Society Act 1912, yeah, for the State Act of Cooperative Society, for them the limit is 50 or more. If the number of employees in the organization is 50 or more, then the act is applicable to them. Okay. For cooperative societies and cooperative state cooperative societies, for them the limit is 50. The Employees Provident Fund Act is applicable to the cinema theater employing 5 or more workers. Okay, so the limit is 3 types of limits are here. First is 20, second is 50, and third is 5 or more. All limits are up to limits, means 20 or more, then the act is applicable. 50 or more, the act is applicable. 5 or more, the act is applicable. Okay, so the 3 limits are 20, 50, and 5. 20 for all other establishments. Okay, establishments, mainly we have seen industries here. Every establishment which is a factory engaging any industry, mainly we have seen industry. Is chartered accountant firm covered here? No, chartered accountant firm is not covered here, because it is clearly mentioned that every establishment which is a factory, and chartered accounting firm is a factory or not? No, it's not a factory. This notification has brought the chartered accountancy firms, hospitals, cinemas, and all not institutions to the cover of what? PF Act. Okay, so we'll see that notification very soon. So there are 3 limits. First is 20 or more, second is 50 or more, and third is 5 or more. So 20 is for all establishment and factories, 50 is for cooperative societies and state of cooperative societies, and 5 is for what? Cinema theaters. Okay. In cinema theaters, if they are employing 5 or more workers, then this act gets applicable to them also. Okay. It means if an establishment, now one doubt is here to me. For example, I have taken one example also. Okay, I have a franchisee business. Okay, in Dadar, Bandra, Andheri, and Parel. Okay, I have a franchisee business, and I am the sole owner of all the franchises owned by him in the Mumbai. Means XYZ, I am taking the example. Okay, XYZ Limited has a franchisee business and is the sole owner of all the franchises owned by him. Okay, XYZ Limited is a company and it has all 4 branches in Mumbai, and the 4 branches consist of this number of employees. That is, in Dadar it's 7, in Bandra it's 8, in Andheri it's 6, and in Parel it's 7. Okay, so total number is 28. Whether PF provision will be applicable? Yes, PF provisions will be applicable. It is seen on the PAN basis. If on a particular PAN, the employees are, the business is seen PAN wise. Okay, XYZ Limited has 4 branches, and all the 4 branches
are under the same PAN. So the PAN wise limit is seen while considering the PF Act. Okay, I have got some questions. Okay, what is the question? What are the establishment notified by central government? Rahul, we are going to see soon. Whether trusts are covered, we will going to see it soon. Does cooperative society includes trust registered? Yes, it includes. Limit 20 includes contracted employee. Yes, we are going to see it, Anand. Okay. The act continues to apply even if the number of employees fall below. As previously we have seen that if the number of employees were 21 on the start of the organization, then you have to take the registration. Okay. If the number decreases to 18, whether the PF Act will continue? Yes, PF Act will get continued. It's just like the GST provisions. If you are once under the regiment, under the provisions of GST, then it continues to be, even if your turnover gets reduced. Okay, it get continues. This is the other non-factory establishment which was given by central government, notified. Okay, besides factory, other establishment employing 20 or more persons can be covered under Act under Section 1(3)(b). Various notifications have been issued extending the provisions of the PF Act to a non-factory establishment. Some major among them are, these are all non-factory establishments. Okay, so some major among them are plantations, mines, coffee shops, basically hotels, restaurants, but obviously cinema and theaters have the lower limit, that is 5 persons. If 5 or more persons are employed in an organization, then it's the responsibility of that cinema hall organization to get registered in PF and get deduction of the employees under the PF Act. Okay, trading and commercial establishments. Okay, laundry, canteens, establishment of attorneys, CA, ICWA, engineers, architects, medical practitioners, hospital, financial establishment, building and construction, industry, poultry, university, college, school, scientific institution, etc. Etc. means they have covered each and every organization in the PF Act if you are employing 20 or more persons. Even the super shoppies, even the malls, even your hospitals are all covered under this act if you are employing 20 or more employees. Okay, what are the questions? This example we have seen that if the franchisee owner is having 4 different branches in the city, so whether he is liable to PF? Yes, he is liable to PF. Okay. So schedule 1 we have already seen. Now, to whom the act does not apply? Yes, I will cover your all doubts regarding to the contracted employees. I will cover your all doubts relating to the what to be included in rent. What to be included in the salary component. I will clear all your doubts. Yes, transporter who has employed driver and helper for the trucks. Yes, it is also covered. All the establishment, all organization, if they have employed more than 20 persons in an organization, is liable to deduct the PF of such employees. Okay, so transporter is also covered here, and if he has employed driver, he will be liable to deduct the PF by paying his salary. Even the wages wala worker are also covered here. Non-applicability. Act not applicable to certain establishment. Which establishment? Any establishment registered under Cooperative Societies Act or state law relating to cooperative society employing less than 50%. If less than 50%, then they are not liable for what? Deducting PF. To any establishment belonging to or under the control of central government and whose employees are entitled to the benefit of contributory fund or old age pension fund. These are all very previous schemes of around 1970 schemes they are, but I don't think any employees are going under the scheme as of now currently. Okay. To any establishment set up under any central or state act and whose employees are entitled to the benefit of contributory provident fund or old age pension.
Factories or establishment employing less than 20 employees. However, once Act becomes applicable, it continues to apply even if subsequently the number is lower than 20. Okay, it's clear. Basically, this Act has given the non-applicability of this to whom the Act is not applicable. We have given the list of these things. Means that leaving this person, all other employers are liable to get registered under PF. I think according to the data of PF department, there are around 7 crore employers. 7 crore employers, out of which 50% employers are only complying with that. Only 50% of the employees are. Yes, Gurpreet, I will cover your doubt whether the company is going to take PF or ESIC at the time of incorporation. Yes, I will clear your doubt. Okay. So what I was telling is there are around 7 to 8 crore employers in India, as these facts are as per 21. Okay. And only 50% of the employers are complying with the provision of PF. Last year, according to the data of the local departments, I personally have seen 1,000 notices in my areas to the employers who are employing more than 20 employees and not complying with the provision. Yes, it's the burden to the employers. I know they have to comply already. They are just bored with the compliances. They are tired with the compliances of TDS. They are tired with the compliances of GST, advance tax, ROCs, and what all not, income taxes compliances. But this is also an additional compliance to them. Okay. So if your client is having a big organization, just confirm with him the applicability of PF. And ये एक्ट की सबसे गंदी बात क्या है? ये जब नोटिस देता है ना, तभी राइट फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन देता है. एक बिजनेस ओनर था, रिटेलर था, एक एग्जांपल लेता हूँ, रिटेलर था, सुपर शॉपी का बिजनेस था, उसके 20 से ज्यादा एम्प्लॉइज थे, नॉर्मल साल का 1-2 करोड़ रुपए कमाता था. ओके, उसने बिजनेस चालू किया था 2012. ठीक है, राइट फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन उसका जो भी उसने पेएनएल में सैलरी का अमाउंट डेबिट किया था, डिपार्टमेंट ने क्या किया, सैलरी का अमाउंट का टोटल किया, राइट फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन उस पे पीएफ का चालान दे दिया, उसको पीएफ का डिमांड दे दिया. ऑर्डर चल रहा है, केस लड़ रहे हैं हम लोग, लेकिन कुछ ये नहीं है. ऑफिसर्स बोलते कि यू हैव नॉट कंप्लाइड विद दैट. हम उनको बता के थक गए कि देखो हमारे समय वो जब मतलब इनकॉर्पोरेशन हुआ था तब हमारे 10 से ज्यादा एम्प्लॉइज नहीं थे, हमारे 20 से ज्यादा एम्प्लॉइज नहीं थे. वी हैव प्रूव्ड देम एनीथिंग, बट द लॉज इज सो स्ट्रिक्ट लॉ कि इट इनकॉर्पोरेट्स पेनल्टीज के केस में ये बोलता है कि राइट फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन तुमको पेनल्टीज लग जाती है. जीएसटी वाले ज्यादा से ज्यादा पीछे 5 साल जा सकते हैं, ये राइट फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन आपको पेनल्टीज लगाते हैं. ओके, एंड कितनी पेनल्टी, जितना भी सैलरी है. फॉर एग्जांपल वो क्लाइंट का हमारा सैलरी था करीब पूरे 8-9 साल का उसने सैलरी डिस्ट्रीब्यूट किया था, अराउंड 8 to 9 करोड़ का सैलरी डिस्ट्रीब्यूट किया था. ठीक है, उसका 24% उसने क्या किया, 24% तो पीएफ को कंट्रीब्यूट करो. ठीक है, एंड इक्वल अमाउंट का उसने ये लगा दिया था, क्योंकि पीएफ और ईएसआईसी में ऐसा प्रोविजन है कि आप जो फीस और इंटरेस्ट है, ये आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उससे ज्यादा नहीं रह सकता. ठीक है, तो 24% उसने उसका लगा दिया और 24% और एडिशनल लगा दिया. करीब 4.5-5 करोड़ की डिमांड के लिए हम अभी भी लड़ रहे हैं. तो ये एक्ट इसके लिए, जब भी आपको लग रहा है कि आपके एम्प्लॉयर को आपने बताना चाहिए, आपके क्लाइंट को आपने बताना चाहिए कि एक्ट अप्लीकेबल कर लो, तो आपने एक प्रायोरिटी पे आपके ऑर्गेनाइजेशन, आपकी जितना भी क्लाइंटेल का बेस है, उनमें से सारे एम्प्लॉइज को, जो भी एम्प्लॉयर्स है बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से, उनसे कंफर्म कर लेना. इवन ऑडिटिंग में भी इसका रिपोर्टिंग करना होता है कि आपने पीएफ काटा कि नहीं, स्टैट्यूटरी ड्यूज भरे कि नहीं, ये सारी चीजों का कंप्लायंसेस करना होता है, आपसे कंफर्म करते हैं. ठीक है, तो बेसिकली बोलने का मतलब ये है कि अगर आपके कोई क्लाइंट्स है, अगर वो कंप्लाई नहीं कर पा रहे हैं या फिर उनको कुछ पता नहीं है, इग्नोरेंस में है वो, जस्ट इन्फॉर्म देम कि ऐसा भी एक एक्ट. ठीक है, क्लियर है? यस, देयर इज क्वेश्चन.
Yes, it is also applicable to gym, Ekta. Yes, now we'll move ahead. Who are the employees covered under this scheme? एम्प्लॉय की डेफिनेशन उन्होंने बोली है. बहुत सारे लोगों को डाउट है कि एम्प्लॉय में कोई डेली बेसिस पे वर्क कर रहा है तो उसका क्या करना चाहिए. आई नो देयर आर मेनी डाउट्स, लेकिन 2 मिनट रुकिए, आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी. आई एश्योर कि आपको क्लियर हो जाएगी आपके डाउट्स. ठीक है, उसके पहले मैं एक आपको मेरा जो क्लाइंट का केस हुआ था मैं वो आपको शेयर करूंगा ताकि आप कुछ रिलेट कर पाओ. ओके, जस्ट अ मिनट, आई विल हैव अ ड्रिंक. ओके, okay, so one of my client, he was in the business of contractorship. बिल्डर था वो, बिल्डिंग्स बनाता था. उसने कॉन्ट्रैक्टर्स को अपॉइंट किया था. कॉन्ट्रैक्टर्स क्या करते थे, लेबर लाते थे, लेबर लाके साइट पे बिल्डिंग बनाते थे. अब ये बिल्डर को पता है क्या कि उसने कौन सा लेबर लाया? नहीं. कॉन्ट्रैक्टर कौन सा लेबर ला रहा है, वो तो रोज हर दिन एक नया लेबर लाएगा. आज कोई दूसरे 100 आए थे तो कल कोई दूसरे 100 आएंगे, वो तो कॉन्ट्रैक्टर है. तो वो केस में हमारा जजमेंट क्या पास हुआ था अभी रिसेंट का है कि अगर प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर कौन है, प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर जो मेरा क्लाइंट वो है, मानो उसका नाम है ए, जो उसने कॉन्ट्रैक्ट सबलीज किया था वो किया था बी को, और बी ने 100 एम्प्लॉइज लेके आया था. ठीक है, तो ये प्रोविजन क्या बोलता है, अगर प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर दैट इज ए अगर पीएफ में नहीं है तो उसको डीम रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अगर उसका जो सब कॉन्ट्रैक्टर है वो रजिस्टर्ड नहीं है. तो मतलब क्या, अगर बी रजिस्टर्ड नहीं रहा ना तो ए के ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी वो 100 एम्प्लॉइज का, क्या 100 एम्प्लॉइज का पीएफ भरने. हम गए कि बोला सर आप बताओ प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज क्या क्या है, ये कैसी डिफिकल्टीज हो जाएगी. कल आज जो 100 एम्प्लॉइज आ रहे हैं कल कोई दूसरे डेली वर्क वाले, ये डेली वेजेस वाले लेबर है, इनका भी सबका मतलब दे आर लायबल फॉर पीएफ और ऐसा वैसा, उनको सब पता है कि कैसे पॉसिबल है. तो उन्होंने हमको पीएफ एक्ट का एक पेज बताया, उसमें उन्होंने क्लियरली लिखा है कि अगर प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर पीएफ नहीं काटता है, ठीक है, तो ही विल बी ओनली लायबल. मतलब क्या, वो खुद लायबल हो जाएगा पीएफ काटने के लिए अगर उसका सब कॉन्ट्रैक्टर पीएफ नहीं काटता है तो. और उन्होंने लिखा कि सब कॉन्ट्रैक्टर और प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एवरी साइट जहां पे उनका काम चल रहा है, बिल्डिंग बन रही है, वहां पे वो एम्प्लॉयर्स का पूरा डेटा ले. एम्प्लॉयर्स का पूरा डेटा मतलब उसका आधार नंबर, उसका बैंक अकाउंट नंबर, उसका ईमेल आईडी और उसका फोन नंबर. इसके बिना तो वो पीएफ में रजिस्टर भी नहीं हो सकता, क्योंकि पीएफ में रजिस्टर करने के लिए बेसिकली मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी तो मस्ट है. ठीक है, और आधार कार्ड मस्ट है. आधार कार्ड भी लिंक्ड रहना चाहिए पैन से, नहीं तो वो लिंक्ड भी नहीं होता है. मतलब उसपे जो डेट ऑफ बर्थ है वो पूरी रहना चाहिए. अब प्रैक्टिकली देखा जाए तो वो एम्प्लॉयर्स के उसमें तो कुछ कुछ ऐसे लेबर्स भी थे जिनका पैन का, जिनके पास फोन भी नहीं था. देवर लाइक आज सुबह कमाते थे और शाम में घर पे जाके खाते थे. उनका कैसे, उनका कोई डिटेल नहीं था हमारे पास. इवन उसमें से कुछ लोग ऐसे थे जो रास्ते पे रह रहे थे. तो इस केस में भी हमने जो ऑफिसर है उनसे अभी हमारा केस चल ही रहा है. पता नहीं क्या डिसीजन देगा वो डिपार्टमेंट को, हमको क्या डिसीजन देगा, लेकिन कैसे फिजिबल है. तो ये सारी जो क्लियरिटी है, ये जो सिक्योरिटी कोड आएगा आगे, जो सोशल सिक्योरिटी कोड जो अभी आने में है, उसमें ये सारी चीजों का क्लियरेंस हुआ है. ठीक है, तो इतनी दिक्कत जा रही है. तो बेसिकली आप लोगों को आपका आंसर मिल गया होगा कि अगर कोई कॉन्ट्रेक्चुअल या डेली बेसिस वाला वर्कर है उसको भी पीएफ अप्लीकेबल रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन को भी पीएफ अप्लीकेबल रहेगा. इज देयर एनी क्लबिंग प्रोविजन फॉर पीएफ अप्लीकेबिलिटी? क्लबिंग प्रोविजन एज इन आई डोंट गॉट योर डाउट आनंद. ठीक है, आप जो क्लबिंग प्रोविजन बोल रहे हो किस सेंस में बोल रहे हो मुझे नहीं समझ रहा है. आप अगर डाउट थोड़ा क्लेरिफाई करोगे तो मुझे बोलना. ठीक है, ठीक है. यस, इट्स आल्सो एप्लीकेबल टू जिम. चलो आगे चलते हैं अपन. तो एम्प्लॉय में कौन कौन आता है? एम्प्लॉय इंक्लूड्स
employed by or through a contract in or in connection with the work of establishment, but obvious इसमें सारे आ गए हैं, आपका employee, नॉर्मल वाला एम्प्लॉय, वेज वाला एम्प्लॉय, डेली बेसिस वाला एम्प्लॉय, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय, सारे एम्प्लॉयज आ गए हैं। इवन हमाल जो होते हैं, जो डेली बेसिस पे वेजेस लेके जाते हैं, वो भी इसमें कवर्ड है। और इसमें अप्रेंटाइज भी कवर्ड है। अप्रेंटाइज मतलब जो काम सीख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक फर्नीचर कारपेंटर है, उसके नीचे एक जूनियर कारपेंटर है, क्या जूनियर कारपेंटर को भी लगेगा? हाँ, ये जूनियर कारपेंटर को भी लगेगा। लेकिन ऐसे अप्रेंटाइज जो एंगेज अंडर द अप्रेंटाइज एक्ट 1961 है। अप्रेंटाइज एक्ट क्या है? जैसे अंडर द स्टैंडिंग ऑर्डर्स ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट और एनी लॉ और इंटेंशन। अब बताओ, फॉर एग्जांपल कोई सीए फर्म है, सीए फर्म में बोला है, सीए फर्म में 5 पार्टनर्स है, और वो 5 पार्टनर्स के हर पार्टनर के जो है करीब करीब आप समझ लो 7 आर्टिकल्स है, ठीक है? तो 35 आर्टिकल्स और 5 चार्टर्ड अकाउंटेंट, 40 लोग हैं। क्या ये चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा पीएफ में? इसका आंसर नो रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप कहीं इंटर्नशिप करते हो और ये इंटर्नशिप कोई लॉ में बोली थी, ठीक है, ये इंटर्नशिप कोई लॉ में बोली है, तो वो ये एम्प्लॉय के डेफिनेशन में आप नहीं आएंगे, ठीक है? तो इंटर्न्स जो होते हैं, ठीक है, डॉक्टर्स के अंडर जो इंटर्न्स होते हैं, जो वर्क सीख रहे हैं ड्यूरिंग देयर फाइनल ईयर, इंटर्नशिप कर रहे हैं, या फिर आर्टिकलशिप जो कर रहे हैं, वो इधर नहीं आएगा। क्लियर है? हाँ, what happens if the contractor is registered with the PF department but remains not compliant? He has to get compliant. जो भी वो कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर रहा है, उस पे डिपार्टमेंट डायरेक्ट पीएफ का एप्लीकेबिलिटी कर देता है। मानो वो पूरा जो कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर सब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और सब कॉन्ट्रैक्टर क्या कर रहा है? बहुत सारे एम्प्लॉइज ला रहा है। तो जो भी सब कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट दिया होगा, उस पे पीएफ एप्लीकेबल हो जाएगा कॉन्ट्रैक्टर को। अदर समझा आपको? ओके। एनी पर्सन हु इज एम्प्लॉयड, अब ये एम्प्लॉय की डेफिनेशन अपनी क्लियर हुई। एम्प्लॉय मतलब वो सारे लोग जो वेजेस के लिए वर्क कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल, नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल। अगर अप्रेंटाइज है तो अप्रेंटाइज कवर्ड है, लेकिन अगर कोई एक्ट के तहत वो अप्रेंटाइज बन रहा है तो वो कवर्ड नहीं है। जैसे आर्टिकल्स, जैसे इंटर्न्स ड्यूरिंग इंजीनियरिंग पीरियड, ओके, दे आर नॉट कवर्ड हियर। ओके, चलो चलते हैं आगे। एलिजिबिलिटी, एम्प्लॉयड टू बिकम अ मेंबर ऑफ फंड इमीडिएटली ऑन ज्वाइनिंग। मतलब क्या? जब भी वो ज्वाइन कर रहा है, मानो मैं आज 7 तारीख को कोई एम्प्लॉयर के अंडर रजिस्टर हो रहा हूँ और मेरी सैलरी देखते हैं 15,000 का लिमिट क्या है, ये सब बताऊंगा आपको, तो मैं आज ही लायबल हो जाऊंगा अगर मेरे को ये एक्ट अप्लीकेबल है। लेकिन मैं एज अ एम्प्लॉई, मेरे को ये एक्ट कब अप्लीकेबल रहेगा? ध्यान से सुनना। Any person who is employed for the work of an establishment or employed through a contractor in or in connection with the work of an establishment where salary is less than 15,000 per month, optionally covered where salary exceeds 15,000 per month. ये एक्ट किसको अप्लीकेबल है? ये एक्ट अप्लीकेबल है ऐसे एम्प्लॉइज को जिनका सैलरी 15,000 से कम था, ठीक है? उनको तो कंपलसरी पीएफ भरना है। और ऑप्शनल किसके लिए है? जिसका स्टार्टिंग सैलरी ही 15,000 से ज्यादा है। मानो मैं एज अ फ्रेश एम्प्लॉय ज्वाइन होता हूँ और मेरा सैलरी 70,000 रुपए पर मंथ है, क्या मुझे पीएफ अप्लीकेबल है? नहीं, मुझे पीएफ अप्लीकेबल नहीं है। लेकिन जनरली सारे ऑर्गेनाइजेशंस क्या करते हैं? मेरे को पीएफ में रजिस्टर कर लेते हैं। पैन इंडिया ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस है, वो किसको एक्सक्लूड करना, किसको नहीं करना, वो मेरे को इंक्लूड कर लेते हैं। और इंक्लूड करने के बाद एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के पास ऑप्शन होता है कि उसका जो है पीएफ हायर अमाउंट पे काटना है कि 15,000 पे काटना है। जब आगे देखेंगे अपन कि कैसे कंट्रीब्यूशन होता है, जनरली 12% जो है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है और 12% जो है वो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है। तो 12% जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, ये 15,000 पे करना कि 70,000 पे करना, और जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है 12% वो 15,000 पे करना कि 70,000 पे करना, ये डाउट वाला पार्ट है। ओके, ये डाउट वाला पार्ट है। इसके लिए उन्होंने बोला कि अगर एम्प्लॉय ऐसा डिसाइड करते कि एक फॉर्म होता है उसका, डिसीजन इज नॉट वैलिड अंटिल द फॉर्म इज फिल्ड, ठीक है? एम्प्लॉय ऐसा डिसाइड करते कि मेरा जो तुम पीएफ है ना, तो हायर सैलरी पे काटो, 70,000 पे 24% काट लेना, 12-12,
तो चलेगा। अगर ये दोनों एग्री है और ये फॉर्म भर देते हैं तो उस केस में वो 70,000 पे कटेगा। अगर वैसा कोई एग्रीमेंट नहीं है उनके बीच में तो मिनिमम जो 15,000 है, 15,000 पे 12% और 12% 1800 रुपए उनको भरना होगा। क्लियर है सबको? तो बेसिकली अगर आपका सैलरी 15,000 से कम है तो आपको पीएफ अप्लीकेबल है, अगर 15,000 से ज्यादा है तो आपके लिए ऑप्शनल है। ठीक है, लेकिन मैं ऐसा एम्प्लॉय हूं जहां पे मैंने शुरुआत करी थी 12,000 से, 4-5 महीने बाद मेरी सैलरी हो गई 18,000। मैंने चालू करी थी 14,000 से और 4-5 महीने बाद मेरी सैलरी हो गई 18,000 रुपए। क्या मेरे को पीएफ अप्लीकेबल रहेगा? हाँ, क्योंकि मेरा एक पीएफ को जो है ना यूएएन नंबर एक होता है, यूएएन यूनिवर्सल अकाउंट नंबर एक होता है। अगर आपके पास वो यूएएन है तो आपको नहीं है क्या कंपलसरी पीएफ भरना है 15,000 मिनिमम पे। वापस से, अगर आपका लेस देन 15,000 है तो आपको भरना ही है। अगर आप एज अ फ्रेशर 15,000 से ज्यादा चालू कर रहे हो तो इट्स एन ऑप्शनल। अगर आप एज अ फ्रेशर 15,000 से ज्यादा चालू कर रहे हो सैलरी आपका तो आपके लिए ऑप्शनल है। लेकिन आप ऐसे एम्प्लॉय हो जिसका सैलरी पहले 14,000 था अब 18,000 हो रहा है तो आपको पीएफ एक्ट अप्लीकेबल हो जाएगा। मिनिमम 15,000 पे तो आपको पीएफ कंट्रीब्यूट करना ही है। whether got or not, वापिस एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आपका सैलरी लेस देन 15,000 है तो आपको पीएफ एक्ट अप्लीकेबल है। लेकिन आपका सैलरी आप ज्वाइनिंग ही 18,000, आपका ज्वाइनिंग ही 15,000 से ज्यादा है तो आपके लिए ऑप्शनल है। लेकिन आपका ऐसा सैलरी है जो पहले 12,000 था, 14,000 था और अब 18,000 हो रहा है तो मिनिमम आपको 15,000 पे तो भरना है। क्लियर है सबको? चलो, तो हो गया ये एलिजिबल एम्प्लॉय का कंसेप्ट हो गया। एनी पर्सन हु इज डिसेबल्ड एम्प्लॉय, अगर कोई डिसेबल्ड एम्प्लॉय है तो ये 15,000 की लिमिट 25,000 रुपए हो जाएगी। क्लियर है सबको? चलो चलते हैं आगे। डाउट्स आए हैं एक दो? चलते आगे। टू कंप्यूट 20 और मोर एम्प्लॉयज फॉलोइंग एम्प्लॉयज आर कवर्ड। अब कौन से एम्प्लॉयज कवर्ड होंगे देख लो। परमानेंट, टेम्पररी, फुल टाइम, पार्ट टाइम, कैजुअल टाइम, टाइम रेटेड, पीस रेटेड, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय, पर्सन एम्प्लॉयड इन वेरियस डिपार्टमेंट, head offices, branches, sales office, godowns or any other different place, etc. And sales representative are counted for computing the employee strength. मतलब क्या? टॉप मैनेजमेंट से लेके लोअर मैनेजमेंट तक जो भी है ग्राउंड लेवल एम्प्लॉइज है सबको काउंट करेंगे एम्प्लॉय की डेफिनेशन में। क्लियर है? अब मेरे ऑर्गेनाइजेशन में क्या है? मेरे ऑर्गेनाइजेशन में 25 लोग, 25 में से 21 लोग जो है वो उनका सैलरी नहीं है क्या 30-40 हजार रुपए और उनका यूएन नंबर नहीं है। ठीक है, उनका यूएन नंबर नहीं है। ठीक है, और जो 4 लोग है ना उनका सैलरी 15,000 से कम है, उनका सैलरी 15,000 से कम है। मैं पीएफ एक्ट अप्लीकेबल नहीं करता हूँ, खुद को ऐसा बोलता हूँ कि मेरे को अप्लीकेबल ही नहीं है क्योंकि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में 20 से ज्यादा लोग है ही नहीं जिनका सैलरी 15,000 से कम है। क्या है मेरा स्टेटमेंट वैलिड है? अगर असेसिंग ऑफिसर ऑफ पीएफ आता है, अगर वो उसको ऑन फिजिकल वेरिफिकेशन मिल जाता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 25 लोग थे तो वो क्या करता है कि वो 25 लोगों को एम्प्लॉय स्ट्रेंथ 20 और मोर ज्यादा है ऐसा मानेगा और अपने को वो 4 लोगों का पीएफ भरने लगाएगा। ठीक है, जो इनका सैलरी 15,000 से कम है। और रिमेनिंग जो 21 एम्प्लॉयज है वो अपने एम्प्लॉयर के हाथ के अंदर ऑप्शन है कि वेदर ही हैज टू कंप्लाई और नॉट कंप्लाई। ओके, क्लियर? Once the employee, always the employee until he closes his UN or accounts or retires. अब क्या हुआ सुनो, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में एज अ एम्प्लॉय वर्क कर रहे थे, आपका सैलरी 16,000 रुपए था तो आपको पीएफ एक्ट एप्लीकेबल है। आपने स्टार्टिंग ही 16 से करी थी, 68,000 से स्टार्टिंग करी थी, ऑप्शन था आपने नहीं लिया तो आपको पीएफ एक्ट एप्लीकेबल नहीं। ठीक है, आपने 16,000 सैलरी थी, 16,000 की सैलरी थी आपकी, आपने बोला कि मेरे को पीएफ एक्ट चाहिए नहीं तो इट्स नॉट एप्लीकेबल। आप 16,000 रुपए से 16,000 रुपए की सैलरी थी, आप बोलते मेरे को अप्लाई कर दो तो पीएफ एक्ट इज एप्लीकेबल। ठीक है, इट्स कंप्लीटली एन ऑप्शन। लेकिन हुआ क्या सुनिए,
मैं एक एम्प्लॉयर के पास था जहां पे मेरा सैलरी 12,000 रुपए, मेरा सैलरी 12,000 रुपए था और वो ऑर्गेनाइजेशन में 20 से ज्यादा लोग थे। क्या मेरे को पीएफ एक्ट अप्लीकेबल है? हाँ, मेरे को पीएफ एक्ट अप्लीकेबल है, मतलब एम्प्लॉयर को कंप्लायंसेस करना है, मेरा वो पीएफ काटेगा। अब क्या हुआ, मैं दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जा रहा हूँ और मेरे को वहां पे इनिशियल सैलरी ही 30,000 रुपए मिल रही है, मेरे को वहां पे इनिशियल सैलरी ही 30,000 रुपए मिल रही है। क्या मेरे को पीएफ एक्ट अप्लीकेबल रहेगा? और वो ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, जो भी एम्प्लॉइज है ना, सबका सैलरी 30,000 रुपए से ज्यादा है, सबका सैलरी 30,000 रुपए से ज्यादा है और वहां पे कोई एक भी एम्प्लॉय नहीं जिसका सैलरी 15,000 से कम है। क्या अब मेरे को बोलो, मेरे कारण वो एम्प्लॉयर को सबके लिए पीएफ रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, मतलब पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो वो बोलते हैं उस केस में क्या करना होता है, अगर एम्प्लॉय ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन हो रहा है जहाँ पे सबका सैलरी 15,000 से ज्यादा है, तो उस केस में उसको क्या करना पड़ेगा, उसका जो पीएफ का अकाउंट है क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है? उसका अकाउंट क्लोज करके वो एम्प्लॉयमेंट में जाएगा उधर, तब उसको वो पीएफ एक्ट अप्लीकेबल नहीं रहेगा। क्लियर है? समझा सबको? अगर वो क्या करता था, पीएफ एक्ट क्लोज नहीं करता था, तो उसको लायबल हो जाएगा वो पीएफ के लिए, ठीक है? और वो एम्प्लॉयर को क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉयर को पहले प्रायोरिटी बेसिस पे क्या करना पड़ेगा, वो एम्प्लॉयर का यूएन अकाउंट कैंसिल कराना पड़ेगा, देन ही विल बी एबल टू ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन। ये जनरली पकड़े कैसे जा सकता है, एकदम डीप लेवल का अगर स्क्रूटिनी होता है तो पकड़े जाता है, ठीक है? अगर असेसिंग ऑफिसर को सीरियसली किसी से बदला लेना है तो वो ऐसे प्रोसीजर्स फॉलो करेगा, ठीक है? मेनली ऐसे प्रोसीजर्स नहीं होते, लेकिन दिस कैन आल्सो बी अ प्रोबेबिलिटी एज पर द लॉ, ठीक है? अब सेकंड क्या, एक और इंसिडेंस लेता हूँ। मेरा सैलरी था 14,000 रुपए और मैं जो एम्प्लॉयर के पास था वहां पे पीएफ एक्ट अप्लीकेबल था, ठीक है? वहां पे पीएफ एक्ट अप्लीकेबल था और वो मेरा पीएफ काट रहे थे। अब मैं दूसरे एम्प्लॉयर के पास जा रहा हूँ, ठीक है? दूसरे एम्प्लॉयर के पास जा रहा हूँ, वहां पे भी पीएफ एक्ट अप्लीकेबल है, ठीक है? और वहां पे मेरा सैलरी 30,000 रुपए। क्या बोला मैंने, मेरा पहले सैलरी था 12,000 रुपए एक एम्प्लॉयर के पास, वो ऑर्गेनाइज वहां पे पीएफ अप्लीकेबल था और वहां पे पीएफ कट रहा था, ठीक है? अब मैं दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जा रहा हूँ, वहां पे भी पीएफ एक्ट अप्लीकेबल है, वहां पे भी पीएफ एक्ट अप्लीकेबल है और वहां पे भी लोगों का पीएफ कट रहा है, ठीक है? अब मैं ये ऑर्गेनाइजेशन में से लेके वो ऑर्गेनाइजेशन में जा रहा हूँ, तो मैं मेरा पीएफ अकाउंट वहां पे शिफ्ट करूंगा। अब मैं वहां पे पीएफ अकाउंट शिफ्ट करूंगा, क्या मैं ऐसा बोल सकता मेरा ज्वाइनिंग सैलरी 30,000 रुपए है, मेरा पीएफ मत काटो? नहीं, आपके पास, आप भले ही आपका ज्वाइनिंग सैलरी इधर 30,000 है, लेकिन आपके पास एक जो लायबिलिटी है, लायबिलिटी मतलब जो यूएएन नंबर है वो आपका साथ नहीं छोड़ेगा जब तक आप उसको कैंसिल नहीं करते हो। तो आप आपके यूएएन को साथ में लेके जा रहे हैं, मतलब आप आपको वहां पे पीएफ कंप्लायंट बना रहे हो, मतलब आपका जो एम्प्लॉयर है नया वाला, उसको पीएफ काटना पड़ेगा। 30,000 पे काटना पड़ेगा, 15,000 पे काटना पड़ेगा, वो उनके चॉइस से डिटरमाइन होएगा, लेकिन 15,000 पे तो मिनिमम पीएफ काटना ही पड़ेगा वो नए एम्प्लॉयर को। लेकिन अगर वो क्या करता है, उसका सैलरी यहाँ पे 12 था, यहाँ पे 30 है, जब वो ट्रांसफर लेता है ना, तब क्या करता है, उसका पीएफ नंबर जो यूएन अकाउंट क्लोज कर देता है और फिर ज्वाइन होता है, तो उस केस में वो जब नए एम्प्लॉयर जिसकी सैलरी 30,000 है, वहां पे उसको रजिस्ट्रेशन लेने का काम नहीं गिरेगा, उसका पीएफ डिडक्ट नहीं होगा। क्लियर है सबको? कुछ डाउट्स आए हैं? यस, ईएसआईसी का मैं अभी आगे दिखाऊंगा आपको। ईएसआईसी है, ईएसआईसी के बारे में बताऊंगा आपको। ईएसआईसी का अभी अपन ने कवर ही नहीं किया है, देखेंगे अपन, ठीक है? हाँ, ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू देखना होता है। इफ देयर आर 21 एम्प्लॉइज एंड ऑल हैविंग सैलरी मोर देन 15K, तो पीएफ अप्लीकेबल नहीं रहेगा वो ऑर्गेनाइजेशन को। ओके मोनल? यूएन अकाउंट कैसे क्लोज करते हैं? यूएन अकाउंट क्लोज करते हैं, आपको एज अ रिटायरमेंट बताना होता है, एक एप्लीकेशन देना होता है ऑनलाइन, और आप वो अकाउंट क्लोज कर सकते हो। सॉरी, उसका ऑनलाइन ही प्रोसीजर होता है, आपको आपका लॉगिन करके पूरा पीएफ विड्रॉल कर लेना होता है। पीएफ विड्रॉल बेसिकली उसमें पेंशन भी होता है, ठीक है? ये 50 ईएसआईसी वाला पॉइंट अपन आगे कवर करेंगे। दीपक, आपका डाउट था व्हेन 10% रेट इज अप्लीकेबल, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ 10% रेट कब अप्लीकेबल होता है, ठीक है? 10% रेट अप्लीकेबल ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को होता है, ये देखो,
एनी एस्टेब्लिशमेंट इन विच लेस देन 20 एम्प्लॉइज आर एम्प्लॉयड। मतलब क्या, अगर आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले रहे हो तो आपको 10% रेट अप्लीकेबल कर सकते हैं, लेकिन मेरा एडवाइस रहेगा अगर आप कर ही रहे हो तो 12% से करो, क्योंकि डिपार्टमेंट ऐसा भी, अगर अपन ऐसा भी करें ना, डिपार्टमेंट बोलता है कि नहीं आपको 12% से ही काटना चाहिए था, आपके गए होगे इसके लिए आपने लिया होगा बोले रजिस्ट्रेशन पीएफ का, नहीं तो आप लेते नहीं थे। तो जनरली मेरा एडवाइस ऐसा रहेगा कि अगर आप वॉलंटरी करा रहे हो ना 12% से ही करो, ज्यादा झंझट मत करो, ठीक है। और 10% रेट किसको अप्लीकेबल है? सिक इंडस्ट्रियल कंपनी which has been declared as such by the board for industrial and financial reconstruction। मतलब सिक इंडस्ट्री जिसकी हालत मेरी, मतलब जिसकी हालत एकदम बैंकरप्सी की तरफ आई हुई है, वैसे के लिए अगर आपके एक्यूमुलेटेड लॉसेस है तो ये उस केस में, या फिर आपकी एस्टेब्लिशमेंट है जूट, बीड़ी, ब्रिक, कॉयर और गुअर गम फैक्ट्रीज की, अगर ये आपकी इंडस्ट्रीज है तो आपको 10% रेट अप्लीकेबल है। अगर 10% रेट किसको अप्लीकेबल है? सिक इंडस्ट्रीज को। अगर आप वॉलंटरी कंप्लायंसेस करते हो और आपका लॉसेस जो है वो आपके नेटवर्क से ज्यादा है, तो उस केस में 10% रेट अप्लीकेबल है। वापस से बोल रहा हूँ, 4 लोग, पहला है अगर लेस देन 20 एम्प्लॉइज है, दूसरा है सिक इंडस्ट्रीज, तीसरा है ऐसी इस्टेब्लिशमेंट जहां पे आपके लॉसेस ज्यादा है आपके नेटवर्क से, और चौथा है जूट, बीड़ी, ब्रिक और कॉयर वाली इंडस्ट्रीज। ठीक है, यस, डायरेक्टर्स का भी टीडीएस कटता है, जब उनकी सैलरी जाती है तो उनका भी टीडीएस बोलो पीएफ कटता है, सॉरी फॉर दैट। व्हाट इन केस ऑफ एम्प्लॉय हैविंग मोर देन वन यूएन, अगर राजू एक पर्सन के दो से ज्यादा यूएन रहते हैं ना, उस केस में वो ऑनलाइन एप्लीकेशन करता है फॉर मर्जिंग द यूआईएन। और ऐसे होती है केसेस, हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स के एम्प्लॉइज जो थे उनके 2 यूएन नंबर निकल गए थे। उस केस में आप पैन डालो दोनों जगह, आपको दोनों पैन की चीजें एक जगह दिखती है और फिर आप उसका मर्ज का रिक्वेस्ट डालते हो, वो एंटायर जो है आपका फंड ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, देखेंगे अपन, क्लियर हुआ? ओके, चलो ठीक है। अब कंट्रीब्यूशन रेट्स ऑफ पीएफ कंप्लायंस की कंट्रीब्यूशन कहाँ जाता है, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन कहाँ जाता है ये अपन देखते हैं। पहले आपको ये बताता हूँ कि प्रेजेंट रेट्स ऑफ कंट्रीब्यूशन क्या है। एम्प्लॉय का जो भी कंट्रीब्यूशन रहेगा, मानो उसकी सैलरी 15,000 रुपए है, तो 15,000 रुपए का 12% जो होता है वो पूरा 1,800 रुपए कहा जाएगा, उसके ईपीएफ में जाएगा। ये बी नहीं एफ है, मतलब क्या, पीएफ अकाउंट में जाएगा, उसका पूरा कंट्रीब्यूशन कहा जाएगा, पीएफ में जाएगा। मतलब क्या, उसका पूरा जो कंट्रीब्यूशन है वो पीएफ में जाएगा। ठीक है, अब ईपीएस में कितना कंट्रीब्यूशन जाता है? देखो, मैंने 2 कंट्रीब्यूशन होते हैं, एक एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन और एक एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। दोनों 12% कंट्रीब्यूट करते हैं, दोनों 12% कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन एम्प्लॉयर जो होता है ना वो ईडीएलआई और ईपीएफ भी भरता है। अब ये क्या है, ईपीएफ तो भरता है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस लग जाते हैं, और ईडीएलआई भरना पड़ता है। मतलब क्या, एम्प्लॉय लिंक डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा एक इंश्योरेंस होता है, तो उसके लिए भी उसको पर एम्प्लॉय पैसे भरना होता है 0.5%, लेकिन मैक्सिमम 75 रुपीज पर एम्प्लॉय पर मंथ भरना होता है। ये देखेंगे अपन। ठीक है, तो देखो, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। ठीक है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 12% है और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी 12% है। एम्प्लॉय जो भी कंट्रीब्यूट करेगा वो पूरा पीएफ में जाएगा, एम्प्लॉय जो भी कंट्रीब्यूट करेगा वो पीएफ में जाएगा। एम्प्लॉयर जो भी कंट्रीब्यूट करेगा उसमें से 8.33% जो है वो पेंशन फंड में जाएगा। ठीक है, वो पेंशन फंड में जाएगा। जो रिमेनिंग है दैट इज 1-12, जो भी एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है उसके पीएफ फंड में, उसमें से ये वाला फंड लेस कर देंगे और इधर जो भी कंट्रीब्यूशन आएगा वो किधर आएगा, एम्प्लॉयर के पीएफ अकाउंट में जाएगा। ठीक है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन पूरा पीएफ में जाता है, एम्प्लॉयर का थोड़ा कंट्रीब्यूशन पीएफ में जाता है, थोड़ा ईपीएस में जाता है, थोड़ा ईडीएलआई में जाता है, और दूसरा जो है एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस में जाता है। क्लियर है? अब देखते हैं ईपीएफ मतलब क्या। ईपीएफ मतलब क्या, पीएफ जैसा पीपीएफ होता है वैसे ही इनका पीएफ अकाउंट होता है, जहां पे आपको रेगुलर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है आपके जो कंट्रीब्यूशन कर रहा है आपका एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। अब पेंशन फंड क्या होता है? पेंशन फंड तो मेरे को ऐसा लगता है गवर्नमेंट के लिए एक तिजोरी है, जहां पे पैसा डाल दो, उस पर कुछ इंक्रीमेंट देना नहीं होता है। आपको पता है क्या, ये जो 8.33% जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के पूरे लाइफ स्पेन में कंट्रीब्यूट करता है ना, इस पे गवर्नमेंट पेंशन फंड के नाम पे सिर्फ पैसा कलेक्ट करती है, उस पे इंटरेस्ट इनकम भी नहीं देती है।
ठीक है, जो भी 8.33% होता है, फॉर एग्जांपल 15,000 का 8.33% होता है 1250 रुपए। ठीक है, हर महीने अगर कोई एम्प्लॉयर है जिसकी एम्प्लॉई है जिसकी सैलरी 15,000 रुपए है, ठीक है, 15,000 रुपए है, उसका 12% कहा जाएगा, मतलब 1800 रुपए कहा जाएगा। उसके एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जो है वो पूरा पेंशन सॉरी पीएफ में जाएगा। एम्प्लॉयर का जो भी कंट्रीब्यूशन है उसमें से जो 1250 रुपए है वो पेंशन फंड में जाएगा। रिमेनिंग 1800 माइनस 1250 कितना होता है, जो भी आएगा 550 रुपए वो जाएगा पीएफ फंड में। ईडीएलआई में 5.5% मतलब 75 रुपीज और ईपीएफ में 0.5% दैट इज 75 रुपीज। इतना हर महीने एम्प्लॉयर को उसके सैलरी में से काटना पड़ेगा। क्लियर है, यस और नो? ठीक है, चलते हैं। तो पेंशन फंड बोलना क्या था कि पेंशन फंड का हर महीना कितना कट रहा है, 1250। अगर पूरे साल का 1250 तो एक साल में 15,000 रुपए कटते हैं एक एम्प्लॉय के। और जनरली अगर जिसकी सैलरी 15,000 से कम है वो उसके बेसिक नेसेसिटी के कारण वर्क करता है, तो उसको टोटल उसका 30 इयर्स जो होता है, फॉर एग्जांपल 4.5 से 5 लाख रुपए अगर गवर्नमेंट को मिलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, उस पे वो इंटरेस्ट 0 देता है, कुछ भी नहीं। जितना डाला था, मानो आपने स्टार्टिंग में पूरा कंट्रीब्यूशन आपका 4.5 लाख रुपए हुआ है, तो वो एंड में आपको पेंशन वो 4.5 लाख रुपए में से ही देंगे। उसमें ना इंटरेस्ट इनकम होता है ना इन्फ्लेशन इंडेक्स का कोई कंट्रीब्यूशन होता है। सिंपली जो पैसा आया वो वैसा की वैसा आपको आपके डेथ के समय या फिर आपके जो फैमिली मेंबर्स है या फिर आपके जो नॉमिनी है उनको मिल जाएगा। अब ईडीएलआई क्या है, एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम, जहाँ पे आपको वो इंश्योरेंस कवर निकालते हैं। बेसिकली ये फॉर प्राइवेट सेक्टर सैलरीड एम्प्लॉइज के लिए होता है। ठीक है, तो ऐसा है कि 12% एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जो है वो पूरा पीएफ में जाएगा। एम्प्लॉयर का जो भी कंट्रीब्यूशन है वो पीएफ में जाएगा। ठीक है, कितना जाएगा, जो 8.33 माइनस 12% दैट कम्स अप अप्रोक्सीमेटली, आप पकड़ के चलो, वो आता है 3.666% जो है वो पेंशन सॉरी पीएफ में जाएगा, रिमेनिंग ईपीएस में जाएगा, बाद में ईडीएलआई में जाएगा, ईपीएफ में जाएगा। ठीक है, इसकी एक चालान बताता हूँ। ये जो भी कंट्रीब्यूशन है ना, ये कंट्रीब्यूशन अपने को कहाँ भरना होता है, ये कंट्रीब्यूशन अपने को भरना होता है एक ईसीआर में। जैसे जीएसटी में जीएसटीआर फॉर्म्स होते हैं, जीएसटीआर 1 में आपको डिटेल्स डालनी होती है, 3B में समरी रिटर्न बनता है, ठीक है, 9 में एनुअल रिटर्न बनता है। तो वैसे इनका ईसीआर है, क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न। ठीक है, ये चालान भी है और इसमें रिटर्न। ये जो फ्रंट पेज है ये चालान है, इसके पीछे का जो पेज रहता है वो क्या रहता है, कंप्यूटेशन का पेज रहता है। ठीक है, रिटर्न वाला पेज। तो देखो इसका सैलरी 31,600 है, पीएफ के लिए 30,000 रुपए लिया है। मतलब क्या, 31,600 में से 1,600 जो रुपए हो गए वो माइट भी पीएफ, उस पे पीएफ अप्लीकेबल नहीं होगा, माइट भी वो बोनस दिया होगा। ठीक है, माइट भी वो कुछ रिएम्बर्समेंट दी होगी। ठीक है, 30,000 जो है वो दिया है और इधर 22,000 रुपए दिया है। ठीक है, अब देखो इनका पेंशन नहीं कट रहा है, इनका पेंशन नहीं कट रहा है, चंद्रिका का और मुरलीधर का पेंशन नहीं कट रहा है। क्यों नहीं कट रहा है, क्योंकि ये ऐसे एम्प्लॉइज है जो जीएसआर 09 को फॉलो कर रहे हैं। अब जीएसआर 09 है क्या, ये 2014 का जजमेंट है, जहां पे गवर्नमेंट ने बोला था कि अगर कोई एम्प्लॉय है वो फ्रेशली ज्वाइन कर रहा है और उसकी स्टार्टिंग सैलरी 15,000 के ऊपर है, मानो वो स्टार्टिंग ही किया 16,000 रुपए से, उसका पेंशन में 1 रुपया भी नहीं जाना चाहिए, उसका तो पूरा पीएफ फंड में ही डालो। ठीक है, उसको पेंशन की जरूरत नहीं है, उसका पूरा पैसा पीएफ में डालो। वापस से मार्क माय वर्ड्स, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर कोई फ्रेश एम्प्लॉय है उसका ज्वाइनिंग कैसे हो रहा है, उसका ज्वाइनिंग हो रहा है, मानो उसकी 40,000 की सैलरी, ठीक है, उसका ज्वाइनिंग ही 40,000 की सैलरी पे हो रहा है, तो उसको लिए क्या ईपीएस अप्लीकेबल नहीं रहेगा, उसका जो पूरा पैसा है वो कहाँ जाएगा, पीएफ फंड में जाएगा। ठीक है, अगर वो 40,000 की सैलरी है तो उसका वो ज्वाइनिंग ही क्या कर रहा है, ज्वाइनिंग ही 15,000 से ज्यादा कर रहा है। और जीएसआर 09 करके एक गवर्नमेंट का 2014 का जजमेंट है, जहां पे उन्होंने बोला था कि अगर आपका कोई एम्प्लॉई है, वो एम्प्लॉय 15,000 की लिमिट के ऊपर से ज्यादा की सैलरी पे ज्वाइन हो रहा है, तो उस केस में उसका पेंशन मत काटो, उसका पूरा जो पैसा है पीएफ में ही डालो। अब नीता का क्या हुआ होगा, नीता की पहले सैलरी होगी 13-14,000 रुपए, बाद में उसकी सैलरी बढ़ के 23,600 रुपए हुई होगी और उसमें से भी उन्होंने रिडक्शन लिया है, 22,000 रुपए पे पीएफ काटा है। आई थिंक सबको समझा होगा।
ठीक है। अब ये ईडीएलआई क्या होता है? ईडीएलआई जो होता है वो एम्प्लॉयड डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस होता है। 75 रुपीज मिनिमम अमाउंट 15,000 पे काटना है, या फिर आपकी जो एक्चुअल सैलरी है विचएवर इज लोअर पे आपको वो काटना है, दैट इज 0.5%। ठीक है, आगे और एक चलान बता दो तो इसमें समझ जाएगा। ठीक है, अब ये वाला केस देखो आप। ठीक है, इसका सैलरी कितना था टोटल? 7968। ये इसने 5 दिन की छुट्टी ली थी, इसके लिए उसका कुछ पगार कटा था और उसको कितना पगार मिला? 6626। तो क्या एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूट करेगा? उसका 18% उसने पूरा कंट्रीब्यूट किया। ठीक है, एम्प्लॉय का पूरा कंट्रीब्यूशन पीएफ में गया। एम्प्लॉय का जो है एम्प्लॉय का पूरा कंट्रीब्यूशन पीएफ में गया 795, दैट इज 6626 का आप करो 12%, दैट इज 795 पूरा जो कंट्रीब्यूशन है कहा गया है? पीएफ में गया है। लेकिन जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है उसमें से 8.33% जो गया वो कहा गया? ईपीएस में गया, पेंशन में गया, और रिमेनिंग अमाउंट कहा गया? उसका जो रिमेनिंग अमाउंट है वो गया है पीएफ में। दिस इज एम्प्लॉय का पीएफ कंट्रीब्यूशन, दिस इज एम्प्लॉयर का ईपीएस कंट्रीब्यूशन, एंड दिस इज एम्प्लॉयर का पीएफ कंट्रीब्यूशन। क्लियर है सबको? चलो चलते हैं आगे। तो इस प्रकार से रिटर्न भरा जाता है। अब बेसिक वेजेस में क्या लेना क्या नहीं लेना, ये सबसे ज्यादा डिबेटेबल इशू है। ये जितना डेफिनेशन इजी दिखता है उतना है नहीं। इन्होंने डेफिनेशन में तो क्लियर बोल दिया, लेकिन जब एक्चुअल प्रैक्टिकलिटीज केसेस होने लगी तो इनके मतलब इन्होंने पूरा बेसिक डेफिनेशन को ही बदल दिया एक जजमेंट के द्वारा। ठीक है, 2014 का एक लैंडमार्क जजमेंट है, 2014 का की 2019 का एक लैंडमार्क जजमेंट है जहां पे उन्होंने पूरी डेफिनेशन ही बदल दी थी बेसिक वेजेस की। अब सुनो होता क्या था। एम्प्लॉयर तो चाहता रहेगा कि उसका जो पीएफ कंट्रीब्यूशन है वो मिनिमम से मिनिमम अमाउंट पे आए, तो वो क्या करता था? बेसिक वेजेस एकदम नेग्लिजिबल करता था और बाकी सारी चीजें बढ़ा देता था। कैश वैल्यू ऑफ फूड कंसेशन, डियरनेस अलाउंस, ये सारी चीजें बढ़ा देता था। वी नीड टू गो फास्ट। लेकिन जो ईएसआईसी जो है ना, ये पीएफ एक्ट थोड़ा बड़ा है, ईएसआईसी बहुत छोटा सा है। ठीक है, वो 15-20 मिनट में ही हो जाएगा, लेकिन पीएफ एक्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ईएसआईसी में कुछ भी नहीं होता है, बेसिक 4% ऑफ कंट्रीब्यूशन होता है, वो फास्ट हो जाएगा। इसको थोड़ा टाइम लगा तो चलेगा, लेकिन दिस इज वेरी वर्दी है। ओके, समझने और कंसेप्चुअल क्लियर है तो आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो इसमें। ठीक है, तो अभी क्या हुआ था, 2019 का लैंडमार्क जजमेंट पूरा हिला दिया था पीएफ वालों को। जो भी एम्प्लॉयर्स थे उनको सबको हिला डाला था कि यार इतना रोबस्ट उन्होंने जजमेंट लाया जहाँ पे उन्होंने जो बेसिक वेज की डेफिनेशन थी उसको हर पॉइंट से क्रिटिसाइज किया है। ठीक है, बेसिक वेजेस मतलब क्या? मींस ऑल एमोल्यूमेंट्स व्हिच आर अर्न्ड बाय एन एम्प्लॉय व्हाइल ऑन ड्यूटी। क्या बोला उन्होंने? कि जो भी वो कमा रहा है ड्यूटी पे वो उसके क्या बेसिक वेजेस में रहेगा, in accordance with the terms of the contract of employment which are paid or payable in cash but does not include। ये 3 चीजों को छोड़ दिया। 3 चीजें क्या है? कैश वैल्यू ऑफ फूड कंसेशन, ठीक है, नो वरीज। डियरनेस अलाउंस को छोड़ दिया। ठीक है, अब डीए को छोड़ रहे हैं मतलब वो कितना बड़ा ऑफ कंपोनेंट ऑफ सैलरी को छोड़ रहे हैं देखो। ठीक है, एचआरए जो मेनली आजकल के 33% सैलरी एचआरए के बेसिस पे क्लेम करते हैं। अगर आपका सैलरी 10 लाख रुपए है तो आप 33.33% एचआरए क्लेम करते हो उसमें, मतलब 3,30,000 आप तो उसमें एचआरए क्लेम करते हो। ठीक है, और उसमें भी डियरनेस अलाउंस रहता है। फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉयर है, एक एम्प्लॉई है। एम्प्लॉयर क्या करता है? उसका बेसिक सैलरी मिनिमम से मिनिमम रखता है, तो वो बेसिक सैलरी उसका 1 लाख रुपए रखता है। ठीक है, बाकी उसमें एचआरए डाल देता है, स्पेशल अलाउंसेस डाल देता है, ओवर टाइम अलाउंस डाल देता है, क्या ही फर्क पड़ने वाला है। तो ऐसी सारी प्रैक्टिसेस हो रही थी। ठीक है, क्योंकि बेसिक वेज के डेफिनेशन में ये सारी चीजें आती नहीं थी। एचआरए नहीं आता था, डियरनेस अलाउंस नहीं आता था, ओवर टाइम अलाउंस नहीं आता था। इवन अगर आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग का एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है और उस अकाउंट पे वो आपको कुछ पे भी कर रहे हैं तो वो भी आपका नहीं आता था। एनी प्रेजेंट्स मेड बाय एम्प्लॉयर, तो ये सारी चीजें नहीं आती थी। तो बहुत बढ़िया, सारे एम्प्लॉयर मजे से अपने हिसाब से वेजेस दे रहे थे और पूरा लॉ का जो है क्रिटिसाइज कर रहे थे इन एथिकल मैनर, क्योंकि उन्होंने ही बोला है। ठीक है, और ऐसा कहीं बोला नहीं है अभी तक कि सैलरी इतना ही रहना चाहिए, एचआरए रहना चाहिए। लेकिन न्यू लेबर लॉ कोड में जो है, जो लेबर कोड सोशल सिक्योरिटी कोड आया है, उसमें उन्होंने स्पेसिफिकली ये चीज को क्लियर कर दिया है। उन्होंने क्या बोला है कि आपके जो अलाउंसेस रह सकते हैं वो 50% ऑफ योर बेसिक वेजेस से ज्यादा नहीं रह सकते। क्या बोला है उन्होंने? अगर आपकी सैलरी 100 रुपए है
तो 50% ऑफ योर बेसिक वेजेस मतलब 50 रुपए से ज्यादा आपके हाउस अलाउंसेस नहीं ले सकते। क्लियर है? मतलब आप 50 रुपए से ज्यादा तक के अलाउंसेस नहीं दे सकते हो। ठीक है, यस और नो? तो उन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपको पूरा इंक्लूड करना पड़ेगा पीएफ की डेफिनेशन में, सैलरी की डेफिनेशन में, बेसिक वेज पे पीएफ का कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए। क्लियर है? लेकिन अभी क्या हो रहा है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोलूंगा आपको, कैश वैल्यू, डियरनेस अलाउंस, ये सारी चीजों को छोड़ दिया था उन्होंने। ठीक है, एम्प्लॉयर अपने मजे से बेसिक वेजेस डिफाइन कर रहे थे, सबको पूरे सैलरी में 40% एचआरए दे रहे थे। 2019 में ऐसा ही कुछ हुआ था। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया था। हुआ क्या था, एक एम्प्लॉयर था, उसके ऑर्गेनाइजेशन में 100 लोग थे। 100 लोगों का वो क्या कर रहा था, सबका 40% से एचआरए काट रहा था, सबका 20% से ट्रैवलिंग अलाउंस काट रहा था। क्यों काट रहा था? बेसिकली पर्पस क्या था, ये एक्ट से बचने के लिए। और टेक इन हैंड जो सैलरी जो है इन हैंड आ रही थी, जो सैलरी आफ्टर बेसिक वेजेस जो कैलकुलेशन आ रहा था वो काफी कम आ रहा था। ठीक है, गवर्नमेंट को ये ध्यान में आ गई, गवर्नमेंट को ये चीज ध्यान में आ गई, तो पीएफ एक्ट ने एक डिसीजन पास किया। उन्होंने क्या बोला कि अगर आप पूरे ऑर्गेनाइजेशन में क्या कर रहे हो, यूनिवर्सली सेम पैटर्न रख रहे हो, तो आपका जो आप एचआरए दे रहे हो, ट्रैवलिंग अलाउंस दे रहे हो, ये सारी चीजें जो दे रहे हो ना, इस पे भी आपको पीएफ काटना पड़ेगा। ये जजमेंट पास किया 2019। ठीक है, उन्होंने किसको रिलीफ दिया? सिर्फ उन्होंने उनको रिलीफ दिया जो एक्चुअल प्रोवाइड कर रहे थे। ठीक है, जो जुडिशियली प्रोवाइड कर रहे थे। जुडिशियली प्रोवाइड कर रहे थे मतलब फॉर एग्जांपल कोई एम्प्लॉयर है, वो 2 एम्प्लॉइज है उसके ऑर्गेनाइजेशन में, एक एम्प्लॉय आ रहा है बाजू से ही आ रहा है, ठीक है, उसको नहीं क्या ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं दिया, कन्वेंस अलाउंस नहीं दिया, लेकिन जो 20-25 किलोमीटर दूर से आ रहा है उसको ट्रैवलिंग अलाउंस दिया। तो ये क्या है, जुडिशियल अलाउंसेस है, मतलब कीपिंग इन माइंड द नीड्स ऑफ द एम्प्लॉइज। ठीक है, ये कैसे अलाउंसेस है? कीपिंग इन द नीड्स ऑफ द कीपिंग इन द नीड्स, जो उनकी जरूरत है उस हिसाब से अलाउंसेस दे रहे हैं। ठीक है, तो दीज आर ऑल कॉल्ड जुडिशियल अलाउंसेस। ठीक है, अगर यूनिवर्सल अलाउंसेस दे रहा है सबको 40% एचआरए, तो इट विल बी कवर्ड अंडर पीएफ। लेकिन वो जुडिशियल अलाउंसेस नहीं दे रहा है, मतलब सॉरी, वो अगर यूनिवर्सल अलाउंसेस दे रहा है तो उसको पीएफ लगेगा, लेकिन वही अगर वो जुडिशियल अलाउंसेस दे रहा है तो उस केस में उस पे पीएफ नहीं कटेगा। क्लियर है सबको? चलिए, अंडर ईपीएफ एक्ट क्या होता है? द कॉन्ट्रीब्यूशंस आर पेबल ऑन मैक्सिमम, ये अपन ने ऑलरेडी देख लिया है। मैक्सिमम वेज सीलिंग कितना है? 15,000 का है। ठीक है, employee can pay at a higher rate. In such case, employer is not under any obligation to pay such higher rate. क्या होता है, मैं बोलता हूँ मेरे एम्प्लॉयर को कि मेरा जो पीएफ है तू 12% से मत काट, तू 20% से काट, 20% से काट। ठीक है, मैं बोलता हूँ कि नहीं, मैं 20% से नहीं काटूंगा, तेरे को 20% से काटना है, तेरे को 20% से पे करना है, तेरा कंट्रीब्यूशन तू 20% से पे कर सकता है। एम्प्लॉय अगर एम्प्लॉयर के पास जाके बोलता है कि मेरा हायर कंट्रीब्यूशन से पीएफ काटो, तो इट्स द ऑप्शन ऑफ एम्प्लॉयर, वो तो एक्सेप्ट करेगा या तो रिजेक्ट करेगा। एक्सेप्ट कर लिया तो वेल एंड गुड, अगर रिजेक्ट कर देता है तो उस केस में एम्प्लॉय जो खुद का कंट्रीब्यूशन है जो 12% डाला था वो इंक्रीज कर सकता है, 20% डाल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एम्प्लॉयर का इच्छा रहेगा कि उसको 12 पे करना है कि 20 पे करना है। ठीक है, वो देखो अगला पॉइंट, टू पे कंट्रीब्यूशन और हायर वेजेस अ जॉइंट रिक्वेस्ट फ्रॉम एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर इज रिक्वायर्ड अंडर पैरा 26(6) ऑफ ईपीएफ स्कीम। अब इसके फॉर्म्स वगैरह मैं नहीं बताता हूँ, एक रिक्वेस्ट देनी होती है। ठीक है, एक मिनट, एक फॉर्म होता है वो आपको भर के लेना होता है, जहाँ पे दोनों साइन करते हैं और बोलते हैं कि हमारा हायर रेट से पीएफ काटो। ठीक है, अब क्या होता है, एम्प्लॉयर बोलता है कि नहीं मैं 15,000 जो है 12% ही कंट्रीब्यूट करूंगा। ठीक है, 12% ही कंट्रीब्यूट करूंगा, मैं तेरा 20,000 पे नहीं कंट्रीब्यूट करूंगा। क्या बोला मैंने? एम्प्लॉय बोलता है कि मैं 20,000 पे पीएफ भरने वाला हूँ। एम्प्लॉयर बोलता है नहीं, जो मिनिमम अमाउंट है मैं 15,000 पे भरने वाला हूँ।
ठीक है, ये ऐसी दोनों की डिस्कशन चलते रहता है। तो जजमेंट क्या आता है, एम्प्लॉयर बोलता है तू मैं मेरा 15,000 पे 12% करूंगा, तू तेरा 20,000 पे 12% कर, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। लेकिन एम्प्लॉयर को प्रॉब्लम कहाँ आएगा, वो एडमिन चार्जेस देखे थे अपन ने 0.5%, ये देखो मैं बताता हूँ आपको, एडमिन चार्जेस देखे थे 0.5%, ये देखो एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस 0.5%। अगर एम्प्लॉयर उसको बोलता है तू 20,000 पे भर, तो एम्प्लॉय 12% से काटेगा, सॉरी 15,000 पे काटेगा, लेकिन जो ये 0.5% एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस है ना, ये 20,000 पे 0.5 कटेगा। वापस से आपको समझा रहा हूँ, अगर एम्प्लॉयर बोलता है मैं 15,000 पे ही तेरा पीएफ भरूंगा 12% से, एम्प्लॉय बोलता है नहीं मेरे को 20% से भरने दो, एम्प्लॉय बोलता है मैं 20% से भरूंगा, तू तेरा 12% से भर, ठीक है, सॉरी 20,000 पे भर और मैं 15,000 पे भरता हूँ। वापस से एम्प्लॉयर बोलता है मैं 15,000 पे भरता हूँ, ठीक है 12%, और एम्प्लॉय बोलता है मैं 20,000 पे भरता हूँ 12%, ठीक है। अगर एम्प्लॉयर एग्री कर लेता वेल एंड गुड, तो एम्प्लॉई भरेगा 20,000 पे 12% और एम्प्लॉयर भरेगा 15,000 पे 12%। लेकिन जो ये एडमिन चार्जेस है ना 0.5%, ये 20,000 पे 0.5% भरना पड़ेगा किसको, एम्प्लॉयर को। क्लियर है, चलो तो वही बोला है उन्होंने कि अगर वैसा कुछ होता है तो उसको हायर इस पे काटना पड़ेगा। कंट्रीब्यूशन इज पेएबल आउट ऑफ एम्प्लॉयर शेयर, अपन ने ऑलरेडी देखा कि कौन पे करता है, एम्प्लॉयर पे करता है 8.33%, एंड नो कंट्रीब्यूशन इज पेएबल बाय एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को कोई कंट्रीब्यूशन पे करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अब पेंशन कंट्रीब्यूशन नॉट टू बी पेड, ये जो पीएफ का है ये कब पेएबल नहीं रहेगा, मैंने लिखा था नॉट पेएबल इफ सैलरी मोर देन 15,000। अगर वो जीएसआर 09 का आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर वो ज्वाइन हो रहा है 30,000 पे, तो उसका पीएफ कटेगा, ईपीएस कटेगा क्या, नहीं उसका ईपीएस नहीं कटेगा, उसका जो भी एम्प्लॉय पूरा कंट्रीब्यूशन कहाँ जाएगा, पीएफ में ही जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है, पेंशन फंड और किसका नहीं कटेगा, जो 8.33% है ना वो किसका किसका नहीं कटेगा, जो पूरा कंट्रीब्यूशन है वो कहाँ जाएगा, पीएफ में जाएगा। देखो पेंशन कंट्रीब्यूशन नॉट टू बी पेड व्हेन एन एम्प्लॉय क्रॉसेस 58 इयर्स ऑफ एज एंड इज इन सर्विस। मतलब क्या, पेंशन कब मिलती है, पेंशन आफ्टर 60 इयर्स मिलती है, और 58 इयर्स पे एक रिटायरमेंट इनका जो है, इनका जो एक्ट में दिया है 58 इयर्स पे आपको रिटायरमेंट होना होता है, ऐसा एक्ट में प्रोविजन है, ठीक है। लेकिन वो बोलता है कि नहीं मेरे को रिटायर नहीं होना है, इट्स द कंप्लीटली चॉइस ऑफ एम्प्लॉय, और वो कंटिन्यू करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर वो जब वो 58 इयर्स होने के बाद अगर वो कंटिन्यू करता है ना, तो एक चीज याद रखना है, जब भी उसका रिटर्न भरोगे, मानो उसका सैलरी 15,000 रुपए है, तो एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन कहाँ जाएगा, पूरा पीएफ में जाएगा, और एम्प्लॉयर का भी जो कंट्रीब्यूशन है 15,000 पे जो 12% है वो पूरा कहाँ जाएगा, पीएफ में जाएगा, ना ही 8.33% वो कंट्रीब्यूट करेगा पेंशन फंड में, उसमें कंट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं, पूरा की पूरा 12% दोनों का कहाँ जाएगा, एम्प्लॉयर का पीएफ में जाएगा। व्हेन एन एमपीएस पेंशनर इज ड्रॉइंग रिड्यूस पेंशन एंड रीजॉइंस एज एम्प्लॉय, अगर वो उसका पेंशन विड्रॉ कर रहा है, फॉर एग्जांपल पेंशन कब विड्रॉ करेगा, जब 60 साल से ज्यादा का हो गया है, और वापस से 60 साल के बाद वो फॉर एग्जांपल 58 साल पे वो छोड़ देता था, ठीक है, 58 इयर्स की जब उसकी एज थी तब उसने एम्प्लॉयमेंट छोड़ दी, अब उसको नहीं है क्या, वो घर पे बैठा था कुछ काम नहीं था, तो वो सोचता है उसको पेंशन भी मिल रही थी, ठीक है, अब वो सोचता है घर पे बैठे बैठे बोर हो रहा हो, तो 62 इयर्स की एज में वापस से एम्प्लॉयमेंट ज्वाइन करता है, तो भी उसका वो केस में अगर उसका सैलरी 15,000 से कम है तो भी उसका क्या पेंशन फंड नहीं कटेगा। अब ईडीएलआई का कुछ नहीं है, मैक्सिमम कितना, सॉरी 75% कटेगा मैक्सिमम, ठीक है, और इसमें भी बोला है कि अगर वो 58 से ज्यादा क्रॉस हो जाता है तो आपको उसका ईडीएलआई कंट्रीब्यूशन काटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट व्हाइल कंप्लाइंग विद द लॉ, आपने क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने तो इस पे एक जो ईसीआर होता है ना, उसका मैंने एक ऑटोमेटेड मैक्रो से शीट बनाया है, ठीक है, उसमें आप सिर्फ एम्प्लॉय का सैलरी डालो और वेदर ही इज एन मतलब वो पीएफ का एम्प्लॉय है, ईपीएस एनपीएस का एम्प्लॉय है, ये सिर्फ लिख दो, मतलब यस और नो लिखना होता है, आपका पूरा ऑटोमेटिक ईसीआर जनरेट हो जाता है। मैंने ऐसा खुद का एक शीट जनरेट किया है, आई विल शेयर विद यू, ओके, ठीक है। अब व्हाट इज द रिस्पांसिबिलिटी व्हाइल कंप्लाइंग, मैं कैसे करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, सारे पीएफ फॉर एग्जांपल इसका रिटर्न भरना होता है अगले महीने की 15 तारीख को, अब दिसंबर का जो है, इसका दिसंबर का रिटर्न कब भरूंगा मैं, 15 जनवरी तक, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, चेक एंड वेरीफाई द पेरोल कैलकुलेशन,
क्या होता है, सैलरी होती है 15,000 रुपए पर मंथ, ये मेरे को पता है, सारे एम्प्लॉयज की सैलरी किसी की 10,000 है, किसी की 12,000 है, लेकिन उसकी नहीं क्या छुट्टियां भी होती है। फॉर एग्जाम्पल ही टेक हॉलीडेज ऑफ 5 डेज, ठीक है, तो उस हिसाब से उसका पेरोल कैलकुलेशन पूरा करना चाहिए। क्या ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिसी है कि छुट्टियां कैसे कटती है, उसके हॉलीडेज कैसे कटते हैं, पेड हॉलीडेज है, ये सारा कैलकुलेट करो। सेकेंड है कि टाइमली रिटर्न फाइल करना है। एक मेन चीज होती है इसमें जो सबसे ज्यादा दिक्कत देती है कंप्लायंस में, एंश्योरिंग प्रॉपर ज्वाइनिंग एंड एग्जिट ऑफ एम्प्लॉयज। एक चीज ध्यान रखनी होती है कि अगर कोई नया एम्प्लॉय आता है तो उसको रजिस्टर करवा के लो, ठीक है, और कोई एम्प्लॉय जाता है तो उसको एग्जिट कर दो। 2 फॉर्म्स होते हैं, आपका ज्वाइनिंग फॉर्म, आप जब एम्प्लॉयर का लॉगिन करोगे ना तब उसने आपको ऐड करना होता है एम्प्लॉय को, और एग्जिट एम्प्लॉय करना होता है। तो ये सारी चीजें हर 10 दिन में पूछते रहना पड़ता है एम्प्लॉयर को कि आपका कोई नया बंदा आया है या फिर कोई छोड़ के गया है। अगर वो बोलता है छोड़ के गया है तो अपने को तुरंत उसको एग्जिट करा के उसका पूरा फंड ट्रांसफर कराना होता है, ठीक है। रिकॉर्ड कीपिंग प्रॉपर रखना पड़ता है। एंश्योरिंग मैचिंग सैलरी फिगर्स विद प्रॉफिट एंड लॉस, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अगर आपके सैलरी में पूरे साल की सैलरी दिख रही है 45 लाख रुपीस, और आपका जो पीएफ कट रहा है वो 20 लाख पे कट रहा है, तो इसका आपके पास रिकंसिलिएशन रहना चाहिए, ठीक है। क्यों रिकंसिलिएशन रहना चाहिए, डिपार्टमेंट कभी भी आके पूछ सकता है कि डिफरेंस क्यों, आपने ये क्या अंडर रिपोर्टिंग ऑफ सैलरी किया है टाइम में, आपके पीएफ भरते समय अंडर रिपोर्टिंग ऑफ सैलरी किया है, आपके जो पीएनएल में है वो तो 52 लाख रुपीज है, लेकिन आप भर क्या रहे हो, 15,000 रुपए भर रहे हो। तो इस केस में आपके पास क्या रहना चाहिए, एक प्रॉपर रिकंसिलिएशन रहना चाहिए, जहां पे आप क्या कर सकते हो, बता सकते हो कि नहीं इसको तो लायबल ही नहीं है, और ये सारी ऐसी कोई नोटिस आती है तो इसका टाइमली रिप्लाई करना। क्लियर है सबको? अभी किसी के डाउट है तो वो देख लेता हूँ। Yes, I will share the PPT after the webinar. प्रियंका जैन, आपका डाउट है पीएफ रजिस्ट्रेशन नॉट एप्लीकेबल इवन इफ एम्प्लॉय आर मोर देन 20 बट ऑल हैविंग सैलरी मोर देन 15K। यस, उसको एप्लीकेबल नहीं रहेगा। यस, पूजन शाह, यू आर राइट, एम्प्लॉयर को टोटल 13% कंट्रीब्यूट करना होता है, एग्रीड है, लेकिन जो मैक्सिमम एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस है ना वो मैक्सिमम 500 रुपए ही पे करना होता है एक मंथ का, उससे ज्यादा पे नहीं करना होता है। क्लियर है? तो बेसिकली 12.5% प्लस 500 रुपए तो पे करना ही है उसको, ठीक है। इज द पीएफ कंट्रीब्यूशन ऑन ग्रॉस? नहीं, ग्रॉस पे नहीं है, अपन ने सैलरी का बाइफर्केशन देखा। अगर वो यूनिवर्सली सेम पैटर्न दे रहा है सबको ऑर्गेनाइजेशन में तो पूरा ग्रॉस पे लेना है। अगर उसने बोला है कि नहीं दिस इज, अगर वो दूर से आ रहा है तो उसको ज्यादा ट्रैवलिंग अलाउंस, वो नजदीक से आ रहा है तो कहीं पास से आ रहा है तो उसको ट्रैवलिंग अलाउंस कम, ऐसा आपका जुडिशियल पैटर्न डिसाइडेड है तो आपको नेट पे लेना पड़ेगा पीएफ। ओके, ठीक है, सारे डाउट्स आई थिंक क्लियर हो गए। डायरेक्टर्स आर आल्सो कवर्ड। ओके, अब चलते हैं ईएसआईसी की तरफ, ठीक है। आई थिंक मोस्टली सारे डाउट्स कवर्ड है। हाँ, डज कोऑपरेटिव सोसाइटीज इंक्लूड ट्रस्ट रजिस्टर्ड है? यस, बॉम्बे ट्रस्ट को भी जो भी बॉम्बे ट्रस्ट के अंदर रजिस्टर्ड है और एंगेज्ड इन एजुकेशन, भावेश यस यू आर राइट, वो भी इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है, वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज में इंक्लूड हो जाएंगे, उनको भी 50 का लिमिट लगेगा। मैक्स परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन एज वीपीएफ, वीपीएफ का वॉलंटरी जो कंट्रीब्यूट कर रहा है वो कितना भी कर सकता है, ठीक है। हाँ, यस आई विल शेयर द एक्सेल। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट एक्ट की तरफ, बहुत इजी एक्ट है, दिस इज ईएसआईसी एक्ट, ठीक है, एकदम सिंपल एक्ट है। एक्ट क्या बोलता है, पीएफ एक्ट था सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। एक मिनट, देखो अब ईएसआईसी एक्ट क्या है, पीएफ एक्ट क्या प्रोवाइड करता था, सेविंग और रिटायरमेंट प्लानिंग प्रोवाइड करता था बेसिकली, ठीक है। जो ईएसआईसी एक्ट है ना, ये ईएसआईसी एक्ट क्या प्रोवाइड करता है, ईएसआईसी एक्ट प्रोवाइड करता है कि आपके जो एजुकेशन जो हेल्थ वाले खर्चे हैं उसके अगेंस्ट एक बेनिफिट प्रोवाइड करता है। जो भी आपका हेल्थ वाला खर्चा है उसके अगेंस्ट बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है कौन सा, ईएसआईसी एक्ट। अब ईएसआईसी एक्ट क्या होता है, कौन से एम्प्लॉयज को एप्लीकेबल है, क्या लिमिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, क्या है, ये सारी चीजें अपन देखेंगे, ठीक है।
तो ESIC एक्ट किसको अप्लीकेबल है, लेकिन एक ESIC का ब्रीफ देख लेते कि क्या है। अगर कोई पर्सन वो कहीं ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है, वो ऑर्गेनाइजेशन में अगर 10 से ज्यादा लोग हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन को ESIC एक्ट अप्लीकेबल है। अब ESIC एक्ट अगर कोई फुलफिल कर रहा है तो उसके एम्प्लॉयज को क्या क्या बेनिफिट है, कंप्लीट मेडिकल केयर। अगर ESIC एक्ट की हर सिटी में, हर स्टेट में, हर छोटे तालुका प्लेस, तालुका बोलो, विलेजेस बोलो, हर जगह डिस्पेंसरीज होती है। डिस्पेंसरीज मतलब क्या कि वहां पे आप मेडिकल चेकअप कर सकते हो, मेडिसिन ले सकते हो, जहाँ पे आपको कोई कॉस्ट नहीं भरना होता है अगर आप ESIC भर रहे हो। ठीक है, कंपेंसेशन फॉर वेज लॉस, इसका मतलब क्या, फॉर एग्जांपल अगर कोई ESIC कंप्लायंट एम्प्लॉय है, वो ड्यूरिंग द वर्क वो गिर जाता है, ठीक है, ड्यूरिंग द वर्क गिर जाता है, कहीं सीढ़ियों से उतरते गिर जाता है और उसका पाव फ्रैक्चर हो जाता है और वो 4 महीने तक वर्क पे आ नहीं सकता है, तो उस केस में वो 4 महीने का वेज लॉस कौन उठाएगा, ESIC उठाएगा। ठीक है, वो ESIC पे करेगा जितना उसका सैलरी था। ये इवन मैटरनिटी के केस में, जो मैटरनिटी लीव्स होती है वुमेन्स की, उसमें भी ये एक्ट अप्लीकेबल है। और ये ना ही जो एम्प्लॉई है उसके एम्प्लॉई को ही नहीं बल्कि उसके फैमिली मेंबर्स को भी क्या देता है, मेडिकल केयर के बेनिफिट्स देता है। हर स्टेट टू स्टेट कितना अमाउंट है ये सारे शेड्यूल्स में बताए हुए हैं, एक्ट्स के अंदर बताए हुए कि कितने एम्प्लॉइज कितना अमाउंट वो मिल सकता है। जैसे फ्रैक्चर्स एंड ऑल के लिए 800 रुपीज पर, ये कोई सर्जरी है मेजर या फिर उसके लिए, तो ये सारे रेट्स वगैरह उधर डिफाइंड है, ये अदर पार्ट है, लेकिन बेनिफिट्स क्या क्या है वो बता रहा हूँ। डिपेंडेंट को बेनिफिट्स मिलता है जैसे फैमिली पेंशन is payable to dependents of a disease। अगर कोई क्या होता है on the work, during the work क्या हो जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, ठीक है, और वो ESIC कंप्लायंट था, तो उस केस में उसके डिपेंडेंट जो बेनिफिशियरीज रहेंगे उनको फैमिली पेंशन मिलता है। क्लियर है सबको, यस और नो, चलते हैं। Now what are the features of ESIC? ESIC स्कीम के फीचर्स क्या है, वही जो अपन ने स्टार्टिंग में देखे, एक बार वापस से गो थ्रू कर लेते हैं। कंप्लीट मेडिकल केयर एंड अटेंशन आर प्रोवाइडेड बाय द स्कीम टू द एम्प्लॉय रजिस्टर्ड अंडर ESIC एक्ट 1948 एट द टाइम ऑफ व्हिच द इनकैपेसिटी रिस्टोरेशन ऑफ हिज हेल्थ एंड वर्किंग कैपेसिटी। क्या कर रहा है वो, मेडिकल केयर प्रोवाइड करता है ESIC किसको, एट द टाइम ऑफ इस इनकैपेसिटी, मतलब क्या उसका कुछ एक्सीडेंट हो जाता है और वो कुछ वर्क नहीं कर पाता है, तो उस केस में कौन, ESIC उसको क्या करेगा, वो उसको मेडिकल केयर प्रोवाइड करेगा, उसकी रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ करेगा और उसको वर्किंग कैपेबल बना के देगा। ठीक है, और ड्यूरिंग हिज एब्सेंटिज्म मतलब क्या, जब वो हेल्थ के दौरान जब उसको फ्रैक्चर हुआ था, उसकी छुट्टियां थी, वो छुट्टी पे था, वो ऑर्गेनाइजेशन में हॉलीडे ले रहा था, तो उस केस में उसकी जो भी हॉलीडेज रहेगी वो क्या हो जाएगी, पेड हो जाएगी। कौन से, ड्यूरिंग एब्सेंटिज्म फ्रॉम वर्क ड्यू टू इलनेस, मैटरनिटी और फैक्ट्री एक्सीडेंट्स व्हिच रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ वेज, कंप्लीट फाइनेंशियल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉयज टू कंपेंसेट फॉर द वेज लॉस। क्या होता है, जो भी वो वर्क कर रहा है ड्यूरिंग एब्सेंटिज्म, अगर उसकी छुट्टी हो जाती है और वो वर्क कर रहा है और उसका इलनेस, मैटरनिटी या फिर फैक्ट्री एक्सीडेंट के कारण उसको अब वो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में क्या होएगा, उसका जो भी ड्यूरिंग द एब्सेंटिज्म का जो वेज रहेगा वो पे हो जाएगा। कौन पे करेगा, ESIC। द स्कीम प्रोवाइड्स अ मेडिकल केयर to family members. Also, as on 31st March, 3.14 crore employees are covered under this scheme. मतलब अभी तक तो वो पहुंचे होंगे 5.5-6 करोड़ तक पहुंच चुके होंगे वो, विद द टोटल बेनिफिशियरीज समिंग अप टू 13.32 करोड़। मतलब ये 13 जो अभी मेरे हिसाब से 4.5 करोड़ लोग हुए और वो 5 करोड़ लोग रजिस्टर्ड एम्प्लॉइज है और इनके जो फैमिली मेंबर्स है इनटू 3 का हिसाब है, बेसिकली हर फैमिली में 3 लोग रहते हैं, तो बेसिकली क्या 13-14 करोड़ लोगों को अभी तक बेनिफिट कर दिया है किसने, ESIC ने। मतलब रफली 10% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन बोल सकते हैं अपन, एक रफ एस्टिमेट तो दे ही सकते, 13% मतलब 10% लोग इस स्कीम का बेनिफिट ले रहे हैं। लेकिन स्टिल देयर आर एम्प्लॉयर्स हु आर नॉट कंप्लाइंग विद दिस स्कीम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ब्रिक मेकिंग फैक्ट्री है, उसको नोटिस आ जाता है तो वो नहीं करता है, अप्लीकेबल ही नहीं करता है, मतलब उसके एम्प्लॉयज क्या रिस्क पे वर्क करते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर्स लोग क्या रिस्क पे वर्क करते होंगे उनके एम्प्लॉयज, अगर ये सारी एक्ट उनकी कंप्लाई करे या एकदम प्रॉपर वे से करे ना, तो उनको भी फाइनेंशियल बर्डन 0 हो जाएगा। क्या होता है, एम्प्लॉयर्स लोग उनके एम्प्लॉयज को कम्युनिकेट नहीं करते कि ये सारे बेनिफिट्स हैं,
और एम्प्लॉइज लोगों को अगर ये बेनिफिट्स कम्युनिकेट कर दिए ना, वो खुशी खुशी इसमें कंट्रीब्यूट करने रेडी हो जाएंगे, ठीक है। 1-2% उनको कंट्रीब्यूट करना होता है, लेकिन एम्प्लॉयर भी अनअवेयर और एम्प्लॉइज भी अनअवेयर, इस कारण से इसका कंप्लायंस होता ही नहीं है प्रॉपर, ठीक है। अगर ये एक्ट को सीरियसली कंप्लाई किए ना, तो मैं नहीं मान मतलब मैं ऐसा पर्सनली समझता हूँ कि किसी पे फाइनेंशियल बर्डन ड्यू टू हेल्थ आएगा नहीं। Broadly, benefits under the schemes are categorized under 2 categories: cash benefit और non cash benefit। कैश बेनिफिट में जैसे सैलरी पेड लीव मिल जाता है, नॉन कैश बेनिफिट में मेडिकल उसको केयर मिल जाता है। अगेन जैसे पीएफ था, ये सेल्फ कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम है, इसमें कोई वेलफेयर फंड नहीं होता है। वेलफेयर फंड मतलब जैसे अपन ने देखा था कि सब्सिडी मिल रही है, इसमें सब्सिडी वगैरह नहीं होता है, आप इसमें खुद ही कंट्रीब्यूट कर रहे हो, आपको खुद का ही पैसा आप कहाँ इंश्योरेंस में लगा रहे हो, आप खुद ही अपने आप को इंश्योर कर रहे हो, ठीक है। अब इसमें भी क्या है, किसको ईएसआईसी एक्ट एप्लीकेबल है। ईएसआईसी एक्ट किसको एप्लीकेबल है, अगर कोई नॉन सीजनल फैक्ट्री, नॉन सीजनल मतलब क्या, जो रेगुलर बेसिस पे वर्क कर रही है, ठीक है, उसके लिए 10 की लिमिट है। और अगर कोई नॉन सीजनल या नॉन पावर फैक्ट्री, मतलब जहाँ पे नॉन सीजनल फैक्ट्री है और नॉन पावर मतलब क्या, जहाँ पे यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। मेरे को नहीं लगता ऐसी कोई फैक्ट्रीज बनी होगी अभी, मतलब प्रीवियसली होगी लेकिन अब तो नहीं रही है, ठीक है। अब तो ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं रही है, ये एब्सोल्यूट क्लॉज है। मेरे को नहीं लगता कि कोई फैक्ट्री रन हो रही होगी विदाउट पावर। आई थिंक सारी पावर से ही रन हो रही है। ये एकदम ओल्ड प्रोविजंस है, मतलब पता नहीं क्यों इन्होंने एक्ट में रखा है लेकिन। तो बेसिकली नॉन सीजनल फैक्ट्रीज है तो 10 से ज्यादा, बेसिकली 10 की लिमिट एप्लीकेबल होते हैं। मतलब क्या, अगर आपकी फैक्ट्री है, फैक्ट्री में 10 से ज्यादा लोग हैं, तो आपको ये एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। और एक और चीज याद रखना है, इसमें क्या बोला है, अप्लाइज टू द फॉलोइंग फैक्ट्रीज एंड एस्टेब्लिशमेंट्स, मतलब सारी आपकी एस्टेब्लिशमेंट्स भी कवर है। जो पीएफ एक्ट में देखे थे, कॉपी पेस्ट आपका वो एस्टेब्लिशमेंट इधर भी कवर्ड है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर कोई रिटेल दुकान है, रिटेल दुकान में अगर 10 से ज्यादा एम्प्लॉइज है और वो 10 से ज्यादा एम्प्लॉइज की सैलरी 21,000, अब इसमें सैलरी की लिमिट कितनी है वो देख लेते हैं पहले, फिर अपन आगे चलते हैं, ठीक है। एम्प्लॉइज का डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में 10 से ज्यादा एम्प्लॉइज है तो आप ईएसआईसी एक्ट को लायबल हो जाते हैं, ठीक है। और ईएसआईसी एक्ट में अगर आप आपके एम्प्लॉइज को 21,000 से ज्यादा की 21,000 से कम की सैलरी दे रहे हो और 25,000 इन केस ऑफ डिपेंडेंट, तो आपको जिनकी सैलरी 21,000 से कम है, जो पर्सन की सैलरी 21,000 से कम है, उनका आपको क्या काटना पड़ेगा, ईएसआईसी में कंट्रीब्यूशन काटना पड़ेगा। सिंपल। इफ इन योर ऑर्गेनाइजेशन देयर आर मोर देन 10 एम्प्लॉइज, then this act is applicable. Okay, this is applicability. And which employees will be eligible to contribute in this act? Employees whose salary is less than 21,000 or 21,000 are liable to contribute in this act. ठीक है, simple. किसको applicable है? It is applicable to all factories and establishment जहाँ पे 10 से ज्यादा employees है, ओके, जहाँ पे 10 से ज्यादा एम्प्लॉइज है। और एलिजिबल एम्प्लॉइज कौन है इसमें? इसमें एलिजिबल एम्प्लॉइज वो है जिनका वेजेस जो है बिलो 21,000 रुपए है, मतलब जिनकी सैलरी 21,000 से कम है, उनका क्या ईएसआईसी में कंट्रीब्यूशन उनको करना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है। अब एस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन उन्होंने वाइड करी है। Central government issued a notification that all factories where 10 or more persons are employed are covered under the ESIC scheme mandatorily. मतलब क्या, उनको तो मैंडेटरीली कवर कर लिया। The following establishment employing 10 or more persons are also mandatory covered under the ESIC scheme. मतलब क्या, अगर जहाँ पे 10 या 10 से ज्यादा पर्सन है, उनको भी मैंडेटरी कवर्ड किया है। देखो शॉप्स को कवर कर लिया है, होटल, सिनेमास, रोड्स, न्यूज़पेपर और प्राइवेट एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड मेडिकल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, यस और नो, चलते हैं आगे। ये देख लिया था अपन ने, ठीक है। अब देखो कितना कंट्रीब्यूट करना होता है। सिंपल एकदम, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 3.25% और एम्प्लॉय का शेयर 0.75%। ठीक है, तो कितना 4% टोटल कंट्रीब्यूट करना पड़ता है ईएसआईसी का। ठीक है, अगर आप ईएसआईसी और पीएफ को मर्जली देखोगे तो एम्प्लॉयर को 30% ऑफ जो उसका एक्सपेंस कर रहा है वो सैलरी का, उसके अलावा उसको 30% एडिशनल कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ जाता है। ठीक है, एडिशनल 30% कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ जाता है ये स्टैट्यूटरी ड्यूज पे करने का। ठीक है, लेकिन क्या कर सकते हैं, स्टैच्यू है,
मेरे को फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। इनकम टैक्स है तो भी भरते ना, 30% का भी स्लैब रेट है तो, और 37% का हायर सरचार्ज है तो भी 42.766 से अपन कोई जो एम्प्लॉयर सॉरी जो एम्प्लॉइज है जिनका सैलरी एकदम हाई है वो भी स्टैच्यू को कंप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। या फिर कोई पर्सन है जो इंडिविजुअल जिसका सैलरी एकदम बिजनेस है और एकदम ह्यूज कमा रहा है, दे आर ऑल्सो पेइंग टैक्सेस। स्टैच्यू है, क्या कर सकते हैं, वैसे ये भी स्टैच्यू है, इसके लिए इसको भी कंप्लाई करना जरूरी हो जाता है, ठीक है। अब देखो वेजेस की डेफिनेशन एकदम सिंपल है, इन्होंने एकदम प्रॉपर किया है, क्या इंक्लूड करेंगे और क्या एक्सक्लूड करेंगे, ठीक है। वेजेस में बेसिक पे को इंक्लूड करेंगे, डियरनेस अलाउंस को इंक्लूड करेंगे, सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस को इंक्लूड करेंगे, एचआरए को इंक्लूड करेंगे, इंसेंटिव्स को इंक्लूड करेंगे, मेडिकल अलाउंसेस, मील अलाउंसेस, एनी अदर स्पेशल अलाउंसेस, अटेंडेंस एंड ओवरटाइम अलाउंसेस। और एक्सक्लूजन क्या क्या किया है, एंटरटेनमेंट, रिट्रेंचमेंट, एनकैशमेंट ऑफ लीव ग्रेच्युटी, डिडक्शन ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, टैक्स, इसको पूरा एक्सक्लूड किया है। एकदम सिंपल है इनका, ईएसआईसी का कुछ भी नहीं है। ईएसआईसी में आपको मंथली रिटर्न भरना होता है 15 तारीख को। ईएसआईसी में क्या होता है, ये सारी सैलरी को इंक्लूड करेंगे, इसको एक्सक्लूड करेंगे। सैलरी का 3.25% एम्प्लॉयर खुद अपने जेब से देगा और जो 0.75% है वो एम्प्लॉय उसके जेब से देगा। क्लियर है सबको। रिटर्न पीएफ और ईएसआईसी की रिटर्न डेट क्या है, दोनों के केस में रिटर्न की डेट है 15th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, ठीक है। अभी मेरे को एक डाउट पूछा था किसी ने, तो उसमें डाउट में ऐसा था कि बोले जब कंपनी का अपन रजिस्ट्रेशन लेते हैं, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मैंने मेरी मतलब एक क्लाइंट है, उनको कंपनी बनाना है, वो 2 ही डायरेक्टर्स थे कंपनी में, प्राइवेट लिमिटेड के लिए अप्लाई किया था, ठीक है। जब अपन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की साइट पे जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, वहां पे पीएफ और ईएसआईसी के बारे में 2 चेकबॉक्स रहता है। वो चेकबॉक्स को टिक नहीं किए तो आगे ही नहीं जाते, उसको टिक कर दिया मतलब आप ईएसआईसी और पीएफ के लिए मैंडेटरी अप्लाई कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, कंपनीज अगर अप्लाई कर रही है तो उनको हाथों हाथ इनिशियल डे 1 से दे दो पीएफ का नंबर। और बहुत सारे कंपनीज को आप जो भी नई कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, ध्यान रखना उसमें पीएफ और ईएसआईसी नंबर आ जाता है। उसके लिए आप प्रॉपर ऑफिसर को लेटर लिखो ईएसआईसी डिपार्टमेंट में और पीएफ डिपार्टमेंट में, दोनों डिपार्टमेंट में अलग अलग लेटर लिखो। कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो ना, हाथों हाथ वो कैंसिल भी करवा लो और उसमें बता दो कि हमारा जो एम्प्लॉय है वो 10 से ज्यादा नहीं है या 20 से ज्यादा नहीं है, ठीक है। मेजर लोग ये वेब में फंसते जा रहे हैं और उनको पता नहीं कि उनका पीएफ है। अब होगा क्या, फॉर एग्जांपल मैंने कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दी 2022 में, मेरे साथ ऐसा हुआ था 22 में, पिछले जनवरी में ऐसा हुआ था, जनवरी या फेब में ऐसा हुआ था कि मैंने एक कंपनी बनाई। कंपनी को मैंने क्या किया, रजिस्टर कर लिया, ठीक है। अब वो रजिस्टर्ड बट ऑब्वियस ईएसआईसी और पीएफ पे टिक करना था, वो भी कर दिया और मेरा पीएफ और ईएसआईसी नंबर वो क्लाइंट का आ गया, ठीक है। और मैंने 4-5 महीने तक रिटर्न्स भरेंगी पीएफ और ईएसआईसी के। मेरे को वो क्लाइंट को नोटिस आ गया कि आप पीएफ और ईएसआईसी कंप्लाइंट नहीं किए। तो उसमें उस केस में क्या हुआ, अब आप ये तो नहीं बोल सकते कि मेरे को पता नहीं था मेरा ईएसआईसी नंबर है, मेरा पीएफ नंबर है। उसको क्या करना पड़ा, भले उसके 10 से कम एम्प्लॉइज है तो भी उसको क्या करना पड़ा था, पीएफ के रिटर्न पूरे फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से लेके अभी तक पूरा कंप्लाई कर रहा है। तो याद रखो, अगर आपको बाय डीम रजिस्ट्रेशन मिल रहा है ना, उस केस में डे 1 पे ही जिस दिन आरओसी को अप्लाई कर रहे हो जो भी आप सीएस से या फिर कोई भी सीए जो है कंपनी इनकॉर्पोरेशन का वर्क कर रहा है ना, ये प्रायोरिटी पे क्लाइंट को बोल देना कि ये मैं तेरे को 2 लेटर दे रहा हूँ, ये क्या करना, पीएफ और ईएसआईसी तुम्हारा नंबर कैंसिल करवा लेना, ठीक है। ये चीज को नोट करके रख लो कि अगर कोई आप न्यू कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, ठीक है। Will ESIC applicable to a CA firm employs more than 10? Yes, अगर उसका सारे ESIC को applicable हो जाएगा CA फर्म को, अगर उसके यहाँ पे 10 से ज्यादा एम्प्लॉइज है इन महाराष्ट्र। क्योंकि अगर आपके फर्म में अगर 10 एम्प्लॉइज है और आपके विनोद पटेल का डाउट सॉल्व कर रहा हूँ मैं, उनका डाउट था, सॉरी मैं डाउट मेंशन करना भूल गया, उनका CA फर्म है और वो बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ 10 से ज्यादा एम्प्लॉइज है, ठीक है। अब मुझे ये कंफर्म करो कि आपकी जो 10 से ज्यादा एम्प्लॉइज है आपके फर्म में, तो आपकी जो सैलरी है, कोई एक भी एम्प्लॉय को 21,000 से कम है क्या? हाँ, अगर है, अगर एक भी एम्प्लॉय को 21,000 से कम की सैलरी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका ESIC में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। मतलब आपको पूरी फर्म का लेना पड़ेगा और उसका हर मंथ ESIC कंप्लायंस करना पड़ेगा। क्लियर है? यस और नो? चलो ठीक है, अभी आगे चलते हैं।
तो बेसिकली एक चीज आपको याद रखना है कि अगर आप कोई नए कंपनी या किसका इनकॉर्पोरेशन कर रहे हो तो आपको उसका पीएफ और ईएसआईसी नंबर दोनों कैंसिल करना है, ठीक है, 15th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, ठीक है। थैंक यू सो मच। किसी को कोई डाउट क्वेरीज मैं पीपीटी भी शेयर कर दूंगा, ठीक है, सबको मेल पे आ जाएगा, ये अश्योर करता हूँ मैं टेक्निकल टीम से। किसी को कोई डाउट्स है तो फील फ्री टू कांटेक्ट, मेरा मेल आईडी दिया है, आप मेरे को डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है। I think Shweta ma'am is not here. Okay. आपका आवाज नहीं आ रहा है, म्यूट हो। आपका आवाज नहीं आ रहा है पुनीत। पुनीत आप म्यूट पे हो आई थिंक। हाय प्रणय, आई गेस पुनीत म्यूट पे है। कुछ क्वेश्चंस है अटेंडीज के, वो आप देख सकते हैं क्या? ओके, देख रहा हूँ मैं। Is ESIC applicable to establishment other than factory? Yes, it is applicable. अपन ने ऑलरेडी देखा है। सुधीर कुमार, देन एनोनिमस अटेंडी का एक है, पीएफ एंड ईएसआईसी बोथ एप्लीकेबल टू पर्सन हु सैलरीज अप टू, अपन ने ऑलरेडी देखा है कि 21,000 और 15,000 का लिमिट है, ठीक है, तो वो रिस्पेक्टिवली एप्लीकेबल हो जाएगा। If a person takes a leave and his salary is reduced, so that month PF will be deducted on the proportion. अपन ने स्टार्टिंग में ही देखा था कि स्टार्टिंग में कंसीडर करते समय अपन उसको ग्रॉस सैलरी देखते हैं, ठीक है। एक पहले अमाउंट देखा था मैंने, लिस्ट में आपको बताया था, ये देखो ये वाला सैलरी देखते हैं अपन। देखो ये वाला ग्रॉस वाला सैलरी देखते हैं, ठीक है, ये ग्रॉस सैलरी है। अब ये ग्रॉस सैलरी देख के ही अपन देते हैं। अब उसका छुट्टी कितने दिन हुआ था, ये वाले एग्जांपल में देखो उसका 12 दिन छुट्टी हुआ था, ठीक है, उसका एक्चुअल सैलरी कितना था 6742, लेकिन उसको एक्चुअल कितना मिला 4045। तो ग्रॉस सैलरी का भी कॉलम होता है और ईपीएफ काय पे कटता है, एक्चुअल पेड लीव्स पे कटता है। क्लियर है? और कोई डाउट्स? ये डीएससी कैसे ऐड करना है, कंप्लायंस वाला मतलब बेसिकली प्रोसीजर पार्ट है। आपका डीएससी का वो आपको वो जो भी है सॉफ्टवेयर यूटिलिटी वो प्रॉपर इंस्टॉल करके हो जाएगा उसमें, ओके। इन केस ऑफ डेली वेजेस दे आर नॉट रेडी टू कंट्रीब्यूट, क्या कर सकते हैं, अभी उसमें कुछ भी नहीं है, तो फिर उसमें क्या करते हैं हम लोग, हम उनका सैलरी ही लोअर बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल उनको 4,000 रुपए देना होता है तो हम उनको बताते हैं कि आपको 3,750 ही मिलेगा। तो आपका सैलरी स्ट्रक्चर आप इस हिसाब से डिजाइन करो दीपक कि जो है आपका जो नेट और ग्रॉस अमाउंट है उनको पता भी नहीं चले कि उनका पीएफ कट रहा हो, ठीक है। देन विच सॉफ्टवेयर टूल्स आर बेस्ट? आई थिंक इसका ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है पीयूष, बेसिकली एक्सेल शीट्स है। इतना हाई एंड इन्होंने बनाया नहीं है अभी तक कि यूटिलिटी की बनाई है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन बट ऑब्वियस एक्सेल में आप पूरा वर्किंग कर सकते हो, ठीक है। Then if workers are more than 10 and the salary is more than 25 for all employees, whether PF and ESIC compliance required? नहीं, अगर सबका 25,000 रुपए से ज्यादा सैलरी है तो आप कोई भी एक्ट में नहीं अप्लीकेबल हो जाओगे। लेकिन आपका क्या होता है उसमें से अगर आपका आंसर चेंज हो जाएगा, इफ वर्कर्स आर मोर देन 10 एंड ओनली 2 एम्प्लॉइज हैव सैलरी लेस देन
हाँ, आपका आंसर चेंज हो जाएगा, आपको फिर ESIC में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा कंपलसरी, ठीक है, PF में लेने की जरूरत नहीं। Any employee under probation for period of 3 months, then yes, PF is applicable. Probation period पे भी PF applicable होता है, लेकिन जनरली क्या होता है, प्रोबेशन पीरियड में उसको एम्प्लॉय नहीं बताते, ठीक है, और उसको जो भी पेमेंट करते हैं, जनरली क्या होता है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन उसको 194 एज अ प्रोफेशनल फीस बता देते हैं, ठीक है। प्रोबेशन फीस जनरली क्या होता है, अगर कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉई है, ठीक है, अगर मेरा प्रोबेशन है तो उस केस में वो क्या करते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा हो नहीं सकता, कोई 192 में भी काट सकता है उनका TDS, ठीक है, सैलरी में भी काट सकता है, लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, उसको 194J बताते हैं। इवन मैं जो ऑर्गेनाइजेशन में जाता हूँ गेस्ट लेक्चर्स लेने, ठीक है, वो मेरे को प्रोफेशनल फीस देते हैं, ठीक है, तो वो सैलरी का कंपोनेंट नहीं है, तो उस पे तो नहीं कटेगा, ठीक है। इज ESIC applicable to establishment? Yes, अपन ने ऑलरेडी देखा ही। Which reference book would you suggest to study more about the act? Bayer Act और आपको circulars notification? पीयूष यादव, आपको नहीं क्या बेयर एक्ट और सर्कुलर्स और नोटिफिकेशंस ही देखने पड़ेंगे, ऐसा फुल फ्लेज कहीं नहीं है। अगर आप फुल फ्लेज देखोगे ना पूरा एक्ट, तो उसमें नहीं क्या, कंप्लायंसेस बहुत कम है, उसमें उनके बारे में ही बताया हुआ है कि उनके ऑफिसर्स कौन रहते, उनका रिटायरमेंट कब रहता, उनका जो कंप्लायंस वाला पार्ट है ना, वो कहीं बुक में कोई, मेरे को तो कोई बुक नहीं मिला है, मैंने बेसिकली जो है एक्सपीरियंस भी बहुत कम है, लेकिन बेसिकली जो है सर्कुलर्स और केस लॉ पढ़ के ये एक्सपीरियंस गेन किया है पीयूष। PF and ESIC both applicable to person, ये ऑलरेडी आंसर कर चुका हूं मैं। In case of ESIC, class of establishment notified mentions shops for 10% limit. So CA firm categorized as shop पर है। विनोद पटेल, आपका डाउट नहीं समझा, लेकिन एक चीज समझ जाना कि अगर कोई एस्टेब्लिशमेंट है, एस्टेब्लिशमेंट में 10 से ज्यादा लोग हैं और उसमें से एक भी पर्सन की सैलरी 21,000 से कम है, तो उसको ESIC एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। और किसके डाउट्स? Whether PF Act applicable to Majur Sanstha? Yes, it's applicable. Yes, डेट ऑफ रेजिग्नेशन और आप ज्वाइनिंग की डेट बदल सकते हो अगर लेकिन उसके लिए प्रूफ सबमिट करना पड़ता है प्रॉपर ऑफिसर को, डिपार्टमेंट में फिजिकल प्रोसेस होता है अगर गलत डेट सबमिट करना। In case of employee previous company PF is deducted but current company is not registered under PF. ये ऑलरेडी अपन ने केस देख लिया है देवेंद्र। So I think previous वाले तो मैंने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। Sir, I had a doubt, sir. If I'm audible, sir, right now? Yes, you are audible. Sir, in case if employees who were registered before 2007 under PF, but there was no online facility and UIN number. Okay. So in those cases, how do those employees claim their PF refund, because they just have their? Wait a minute. Can you pardon the doubt? I got a practical case like there was one employee who stated that I had my PF deducted before 2007, but he said he's just having his salary receipt. So how to get that procedure online, or like he has to go to department and claim it refund? No. Basically, if there is an employee who has his UIN earlier, okay, basically he was having his PF account previously, so he needs to update the his employee details. Basically, what he needs to go to the PF department with his previous salary slips and tell them to update his Aadhaar and PAN card. Once the Aadhaar and PAN card is generated and registered mobile is registered, he can see his account online, and if you want to transfer this account to his new employer, he can transfer it. But he needs to go to the department for with the supporting receipts, right? Huh? Yes, even they are answering on mail. Now they have currently started answering on mail also. I have many cases like this, and if I'm registering the person, but it is saying that the person is already registered, and I'm not having the UIN number, so I can get the UIN number from the department. You mail your jurisdictional officer
कि I need the UIN number of so and so person and share his proof that his date of birth, his PAN card, he is currently employed with us, but we are not able to deduct his PF because we don't have his UIN number. They will provide you in within a day or two. All right, sir. Thank you very much, sir. Yes, yes. So, respected participants, I hope you have got the contact details of Pranay Bafna ji. So, if needed, he can again share his card and you can note it down, sir. Sir, could you just share your card again in case if anyone missed out? I am sure. Wait a minute. No problem, sir. Thanks, sir. So yes, this is the contact detail of Pranay Bafna ji, and if there is any queries left out, or if there is any queries which are not which is not able to be understood in this session right now, so you can mail or either contact on WhatsApp to sir, and you can get your queries sorted. So this was a very dynamic session right now with Pranay Bafna ji. Getting a complicated law to be understood in a session of 2 hours was indeed, and in our language, in our Hindi language, was really appreciated, sir. Thank you very much, sir. Welcome, welcome. So we should proceed for the vote of thanks right now, sir. Ma'am, Shweta Yeah, ma'am. please go ahead. Please go ahead. And thank you. It was really wonderful. Thank you, ma'am. Wonderful session, Pranay. Yeah, please go ahead for a well-deserving vote of thanks. It's a privilege to have such young and dynamic chartered accountants who have started specializing the laws, because it is easy to be jack of all trades but master of none. So you have mastered it, so it's very much appreciated. I feel honored and privileged to get the opportunity to propose a vote of thanks on this special occasion. I would like to thank all the honorable delegates who blessed us with their presence. I am also very thankful to our WRC Secretary, CA Shweta Jain, my colleague, CA Rahul Jain, my co-coordinator, and our speaker, brilliant speaker, CA Pranay Bafna, who gested the such complicated labor law, ESIC, EPF, and giving each and every detail, and that also in Hindi, and making all our participants comfortable. So this was a very brilliant lecture, and the session was very much indeed appreciated. So therefore, I propose a vote of thanks on behalf of everyone. Thank you very much, sir. Thank you so much. It was a very great experience for me also to guide so many people. Shweta ma'am. Yes.